Hey everyone, good evening all of you. कैसे हैं बच्चों? Hi Harini, hi Gayatri, hello Nakshatra, hi Megha, hello Rachita, good evening Jasna, hi Tanika, hello Ratan sir. Okay, hi Swaleha, Garvit. Okay, if I'm missing any names, don't feel bad because the chat is going quite fast. Hi Anurag, hi Sitesh. Hello, Akshay. Yashika is saying, how are you? I have a small request. Please say the Rini to type the poem that she wrote, Abhishek sir, in the chat, cause I have received a small request from his side. अभिषेक सर के चैट में जो लिखा था वो चाहिए पोएम उसको, ठीक है? विच अभिषेक सर? अभिषेक के यार सर, वो तो क्लास 10th में हुआ होगा ना? एंशिएंट सिविलाइजेशन की बातें. हाय अंश, हाय नंदना, हाय तेजस, हाय खुशी, हाय अदिति. चलिए, वेरी नाइस, वेरी गुड टू सी यू ऑल एवरीवन. And hi Ankit, good evening, I'm good. चलिए, so how was your week everyone? How was your weekend by the way? सब अच्छा गया? All good? Happy in life? बाप रे, इतना लंबा चौड़ा क्या लिखा है तरुणी ने? आप सर कैसे हैं? एक सरप्राइज है. हाँ, बताइए बताइए क्या सरप्राइज है? गुड राइट, वेरी नाइस वेरी नाइस. शुभांगी सिंह, फिर से मेरा मैसेज क्यों नहीं दिख रहे? अरे बेटा, वो बहुत जल्दी चला जाता है, समटाइम्स आई एम नॉट एबल टू सी दैट, है ना? ओके, तरुणी इज आस्किंग टू अनम्यूट, तो चलो एक बार अनम्यूट कर लेते हैं, तरुणी की बातें सुन लेते हैं. यस सर, आर यू स्पीकिंग? Good evening, sir. ओके, एक सेकंड, शायद मेरा स्पीकर काम नहीं कर रहा है अभी. मैं इसमें गा रही हूँ. वन सेकंड तरुणी, इफ यू आर स्पीकिंग जस्ट वेट फॉर वन सेकंड. ओके, क्या सर? ये तो नहीं काम कर रहा. ओके, वन प्लस बुलेट, नहीं नहीं नहीं. आई नीड टू प्लग आउट माई दिस थिंग, आई मीन प्लग इन दिस थिंग. चलो रुको, मैं हेडफोन्स लगाता हूँ आपकी बात सुनने के लिए, ठीक है? वेट करो, बिकॉज आई एम नॉट एबल टू हियर यू. ठीक है. ओके तरुणी, आर यू स्पीकिंग? या. हाँ, नाउ आई कैन हियर यू, टेल मी. हाँ, तो आपके लिए एक सरप्राइज है, नेक्स्ट वीक एक सरप्राइज है. तो आपके लिए दिस वीक ओनली वन सरप्राइज इज देयर, नेक्स्ट वीक एक और सरप्राइज आएगा. So this week's surprise is basically I wrote a poem on all my teachers who taught me Vedanta. And do you want to hear what I wrote about you, or do you want to hear what I wrote about others and you, or do you want to only hear what I wrote about you? About me, I'm a bit selfish right now, huh? Tell me about me. ढूंढना हाँ, पड़ेगा. हाँ, अच्छा मिल एक काम गया. करते हैं, अभी बाकी टीचर्स का सुन लेते हैं, मेरा बाद में, ठीक है? तो थोड़ा और सस्पेंस रहेगा, तो इट विल बी गुड. यस, बाकी लाइन में टीचर्स का बता दो. है. हाँ, से क्या क्या? फ्रॉम पूरा लाइन में है. देन इन लाइन. ओके ओके ओके, ठीक है. So you're not basically the last one. You're in middle somewhere. ओके ओके, ठीक है. Okay. From the day I joined Vedantu till today, I had many teachers. In grade 10 there was Shweta ma'am. She loved us all and supported us all. Through the rough times of our boards, she was a chemistry pro and made me a pro. Abhi sir. He wasn't a sir. He was like a brother and a best friend. He made us solve sums that had no end. But he made us love physics and not hate it. Shalini ma'am, she was a pro at bio. Evolution would have been hard in bio without her. But with her, it was the easiest subject on earth. She told us many concepts that were hard, but we weren't disheartened as she made them easy. Mohit sir, he taught the most hateful subject, math. But he tried to make it better one for us to learn. He cracked funny jokes and loved to say yo guys. Later during revision, we all had fun learning math. Finally, fun was math. Later I moved to grade 11 and 12. There chemistry was taught by Sudhanshu sir. He was a jovial sir. I was really scared of him at first. Now I believe your impressions are not true at first. He is the best scientist I've ever met, and I know I won't be meeting anyone like him. Gaurav sir. Sir के मुंह पे हंसी आ गई. Gaurav sir. We nicknamed him Mickey sir. He takes risky paths to teach us physics, and he teaches it really well. He says jump on a bolero car spring, and we laugh springing up from our chairs. We are really trying to publish a book called Dumb Ways to Die by Gaurav Gupta. Vani.
Vanidhi. She's the loveliest person I've ever met. Her sarcasm is top level, and there are no words I can explain my love for bio and the way she teaches. But simply, I say she's the definition of love, big sister, and biology. If I can write, I could write a page about her. Pankuridhi, or many call her Paridhi. She she has in-depth knowledge of botany, and learning botany from her made me a pro in botany. I literally hated her at first. Now I believe that your impressions are not true at first. I could write a page about her too. Many people who know me think I might have missed a person. No, I didn't. It's Vishak sir. He's been with me through this journey from day one of grade 10 till today. I hope he stays with me till the last day of 12th. He has been an amazing mentor and a teacher, taking my doubts even at midnight. Life may move on and I might become a famous person or not, but I will never forget the teachers who taught me through the most crucial times of my life. By Sai Karni. Wow, amazing. This was so heart touching, and I literally got some goosebumps. Nice, nice, Taruni. You are a very good writer, by the way. Thank Claps, you. exactly. Claps for you. Wow, very nice. बहुत अच्छा लिखा है आपने. And सभी टीचर्स के लिए, yes. So guys, teacher student bond is one of the purest and one of the nicest, I believe, right? So even I am in consistent touch with my teachers who taught me, starting from my school, my engineering college, whatever coaching center, wherever, right? So there are some teachers जिनके साथ सच में बॉन्ड बन जाता है. तो आई होप आपका भी बॉन्ड ऐसा बन रहा है आपके वेदांतु टीचर्स के साथ, हाँ. एंड दैट इज द बेस्ट थिंग दैट कैन हैपन, है ना. बहुत अच्छी बात है It's एवरीवन, like, एंड डोंट फॉरगेट अस वंस यू बिकम डॉक्टर्स, राइट. मैं इलाज कराने आऊंगा आपके यहाँ, सर्दी खांसी बुखार, see, ठीक है. so हाँ. you see it. I left grade 10 and I came to grade 11 and 12, but I didn't forget the teachers who taught me in grade 10. I still call them. नाइस नाइस, एग्जैक्टली एग्जैक्टली. देखो, Please for आने teachers. वाले टाइम पे, हाँ, आई एम टेलिंग यू पॉजिटिव थिंग, आने वाले टाइम पे द doctor consultation will also become online quite frequently. People will have online consultation, right? So हाँ. I'll not forget you people, ठीक है. मैं आपको करूंगा, आप फ्री में इलाज कर देना, ठीक But you है. don't, जस्ट किडिंग. sir. You don't need a हाँ psychologist. Where will you come? Why will you come to me? हाँ हाँ, ओके ओके, नाइस नाइस नाइस, सो नाइस ऑफ यू. चलिए, थैंक यू धरणी, इट वाज सो नाइस. ओके, चलिए. Truly, thank you so much, sir, for being part of the two most important years of my life. And yeah, yes, thank you, Sneha, and you too all. चलिए, तुमने आज आते ही इमोशनल कर दिया, है ना. बट फिर भी पढ़ाऊंगा मैं. चलो, कोई नहीं बच्चों, है ना. एंड वेरी नाइस. ये सब बहुत अच्छा है, एंड all positive thoughts we can see in your minds, that is a very good thing, and that tells that we are doing the right thing, है ना. तो आप भी पढ़ाई अच्छे से करो, है ना. सो दैट वी विल ऑल्सो बी प्राउड ऑफ यू एट द एंड ऑफ द ईयर. जब नीट का एग्जाम हो जाएगा, जब रिजल्ट्स आ जाएंगे, हम भी खुश होंगे बहुत ज्यादा, है ना, आपके रिजल्ट्स को लेके. बट यस, डोंट टेक एनी प्रेशर, ठीक है. प्रेशर बिल्कुल मत लेना, आपको मैं डरा नहीं रहा हूँ, धमका भी नहीं रहा हूँ. बट यस, पढ़ाई करो, है ना. एंड देन इफ द रिजल्ट कम्स, हैप्पी एंडिंग, मजा आ जाएगा, है ना यार. चलिए एवरीवन, तो अब स्टार्ट कर लेते हैं, है ना. चलिए, तो आई एम गोइंग टू स्विच ऑफ द चैट फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स, एंड रतन सर, आई विल शेयर दैट लिंक एट द एंड, राइट. आई ऑल्सो हैव दैट लिंक, तो मैं बाद में शेयर कर दूंगा. चलिए गाइस, सो वी विल बी फिनिश द चैप्टर टुडे. यस, आई होप वी विल बी एबल टू फिनिश द चैप्टर. अभी मैं इसको हटा रहा हूँ, ओके. स्टार्ट करें क्या? कैन यू हियर मी नाउ सर? अभी ऑडियो है, एंड दैट इज व्हाई आई रिफ्रेश, बिकॉज आई प्लग्ड आउट दैट हेडफोन, राइट. नाउ इट्स फाइन, ओके ग्रेट. चलिए, तो हाउ इज द जोश एवरीवन? जोश आई है, पढ़ाई करें. लेट अस फिनिश दिस चैप्टर टुडे, है ना. विद अमेजिंग कंसेप्ट्स दैट आर रिमेनिंग, इसको खत्म करते हैं आज, एंड देन विल बी स्टार्टिंग करंट इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम टुमारोज क्लास, राइट. चलिए, वेरी नाइस. Okay, everyone. Yes, then we'll be starting current electricity. Chaliye. So, guys, a quick recap of what we have seen in the last class. Last class, I kept it quite short.
और उसका रीजन था बिकॉज वी वर स्टडिंग कंडक्टर्स एंड कंडक्टर टॉपिक समटाइम्स इट कैन बी स्लाइटली हैवी फॉर अ स्टूडेंट टू डाइजेस्ट, है ना, कई बार लगता है कि यार इतना सारा पढ़ लिया, क्या क्या चीजें हैं इसमें. But yes, it's easy by the way. If you read it again and again, it becomes easy and easier and easier over the time. So in conductors, what we have studied in the last class. One second. हाँ, चलो. So conductor में हमने क्या क्या पढ़ा है देखो. If you have a conductor, the first thing first, the charge remains only at the surface, even if it is a like a solid conductor which is having volume everywhere, or even if it is a hollow conductor, charge remains always on the surface only. Apart from that, we have seen by the application of Gauss law that electric field inside the conductor at every point remains zero. There is no electric field inside the conductor, and because electric field was zero, we said electric field is given by minus dv divided by dr. So if electric field is zero, dv by dr will be equal to zero, and which told us that potential is actually constant. And then we said because the potential is constant, we call it equipotential surface, है ना, यहाँ तक हमने देख लिया था. So this is an equipotential surface, and because it is equipotential surface, one more thing we have seen, if any electric field line is coming towards the conductor, it will be always normal to the conductor. Inside the conductor, it will be zero, right? So these are the electric field lines, I can say. So sometimes you will find this diagram in books, है ना, एनसीईआरटी में भी आपको देखने को मिलेगा. These are the electric field lines for a conductor. देखो ये वाला भी center से pass होगा. So about the normal, we know one thing, they pass from the center. So these are the electric field lines passing through the conductor or conducting sphere, I can say, right everyone? So are we clear on this thing? First of all, tell me in poll. This is just revision from the last class, right? So ये हमने last class में किया था. Now we are going to move ahead and we are going to continue with conductors or metals for some more time. And the new topic which is today which is you can say electric dipole. तो थोड़ा सा अलग सा टॉपिक है, पोटेंशियल से रिलेटेड है. दैट ऑल्सो विल बी डूइंग एट द एंड एंड दैट विल फिनिश अवर चैप्टर. ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं टुडेज क्लास. एंड यू मस्ट हैव सीन दैट जीआईएफ, राइट? ये इंटरेस्टिंग सा जीआईएफ आपको दिखाई दिया होगा. सो हैज द जीआईएफ लोडेड फॉर ऑल ऑफ यू? टेल मी इन yes and no. If it is loaded, say yes. If it is not, then say no. Let me see for how many of you it is loaded already. 90%, right? It is loaded, and I hope it will load for rest of people in just some time, right? थोड़ा सा वेट कर लो, लोड हो जाएगा. देखो यहाँ पे क्या है, if lightning happens, right? मान लो आपसे पूछा जाए, if lightning is happening, where will you go? कौन सी डायरेक्शन में भागोगे? इंडिया में some people, so when there is lightning, there is rain also, है ना? So most of the people, what do? They go near a tree, है ना? Should you go near a tree? जाना चाहिए क्या पेड़ के पास? क्या लगता है आपको? Yes or no? When lightning is happening, rain is also happening, you should not go, right? That is very wrong because lightning in general it strikes the trees. अगर आप ट्री के नीचे हैं तो that is a dumb way to die, है ना, जैसा आप लोग अभी अभी कह रहे थे. So don't run towards a tree. Better option is go inside a car. Don't touch the body of the car. Just be seated in the seat of the car. लॉक करने की भी जरूरत नहीं है, लाइटनिंग ऐसे दरवाजा खोल के नहीं आ जाएगा अंदर. So just go inside the car and be seated there. ठीक है? So this concept we are going to understand today कि what actually happens and why the lightning cannot strike you if you are like sitting inside a car. ठीक है? तो वही चीजें हम समझने वाले हैं. तो बेटा tell me, the outer body of the car can I consider as a conductor? ऑब्वियसली हमारे यहाँ तो मेटल का ही होता है कार, आपके यहाँ प्लास्टिक का होता है, तो वो कार नहीं है, कुछ और है, मेटल का ही होता है ना, वी ऑल नो दैट. सो वी कैन कंसिडर दैट एज अ कंडक्टर. ठीक है, अब इसमें देखो कंसीडर करते हैं एंड लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर टॉपिक. ओके, चलिए एवरीवन. सो द टॉपिक नेम, इफ यू वांट टू नो, द टॉपिक नेम इज इंडक्शन इन मेटल्स. ठीक है, इंडक्शन इन मेटल्स इज द टॉपिक नेम. आई डोंट नो व्हाई द स्लाइड इज लोडिंग फॉर मी, बट इट केम. चलो, so charge induction in metals. ठीक है, before going ahead and explaining this particular slide, let me ask you a very simple question.
Guys, if you have a conductor, let's say, है ना, some random shape conductor, so let's say this is a conductor, I'm saying this is a conductor means it is a metal also, right? एक ही बात है. If I try to give it a charge of q, okay, if I try to give it a charge of q, you guys have to tell me where will the charge reside. Option A है charge will be at the surface only, और ऑप्शन बी है द चार्ज विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द वॉल्यूम. कहां पे होगा? पूरे वॉल्यूम में होगा चार्ज, एवरीवेयर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, या फिर इट विल बी एट द सरफेस ओनली. टेल मी एवरीवन, बिकॉज दिस कंसेप्ट इज नीडेड फॉर अस. बताइए एक बार, will it be on the surface only or will it be distributed throughout the volume if it is a conductor, I said, है ना, अगर ये metal है तो. So expecting most of you to give the correct answer. By the way, wrong answers are just a part of two sides of a coin, you can say. तो वो भी आएंगे ही, हमें पता है. But let me see. 90%. चलो ठीक है. I have taught you this topic, right? Conductor में charges remain only at the surface. No charge can go inside the conductor. यही तो कहानी है कंडक्टर की. Right everyone? Do you remember this? पोल में बताओ मुझे. कंडक्टर में कहां से कब से चार्ज अंदर होने लगा? कंडक्टर में तो चार्ज इज ऑलवेज outside. If you may ask ki, sir, tell me how to understand this thing, like can you give any logic? One logic I had given when I started conductors topic, first class of electrostatics. Charges will repel each other, and because of the conducting nature of the material, they will also flow away from each other, they will move away from each other, and finally the maximum they can move is up to the surface, usse bahar nahi jayega, hai na. So that is why they reside on the surface. Another logic is, we also know everyone, the electric field at any inside point in case of a conductor, it must be equal to zero, right? So here also you can prove this particular fact that no charge will be inside the conductor. Kaise? Electric field at any inside point is zero. So if I just take one Gaussian surface just inside the conducting surface, ye dekho, just inside the conductor, you are taking a Gaussian surface, right everyone? Then for that Gaussian surface आप क्या लिखेंगे? E dot dA is equal to Q enclosed divided by epsilon naught. So beta, what is the Q enclosed for this Gaussian surface? Zero, right? There is no charge inside for a conductor, right? So that is why you can say electric field is also zero everywhere. तो ये इसका एक दूसरा तरीका हो गया इस चीज को समझने का, है ना. So two things to understand from here. Sir, I have said to sir that poem next session में आएगा. He said he is waiting for it. तरुणी, ओके ठीक है. तरुणी, आपको यशिका को भेजना है वो, ठीक है, राइटिंग में उस पोयम को भेज दीजिएगा उनको आप, ठीक है. सो व्हाट डिड आई से एवरीवन? हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी इनसाइड पॉइंट विल बी जीरो, चार्ज विल ओनली एट द सरफेस. तो इफ आई गिव द चार्ज टू द कंडक्टर, इट विल रिसाइड ऑन द सरफेस. अब आप लोग मुझे एक बात बताओ एवरीवन, इफ आई डू द सेम थिंग हियर, इफ आई गिव सम चार्ज q टू दिस वन विच इज हैविंग अ कैविटी. कैविटी सबको समझ में आता है क्या? वो डेंटिस्ट के पास जाते हैं ना कैविटी को फिल कराने के लिए. उसका मतलब कैविटी का कंसेप्ट वही है, ठीक है. कैविटी मतलब अंदर जाके कुछ होल वोल है, गंदा सा, है ना, कीड़े लग गए हैं दांत में. बट यहाँ पे ऐसा कुछ डिस्गस्टिंग नहीं है. दिस इज कैविटी फॉर अ कंडक्टर, है ना, अंदर जाके कुछ कैविटी है. सो इफ आई गिव द चार्ज क्यू, वेयर विल इट डिस्ट्रीब्यूट इटसेल्फ? ओनली ऑन द आउटर सरफेस और ऑन द कैविटी एज वेल? क्या लगता है आपको? विल इट बी ओनली एट द आउटर सरफेस इफ इट इज अ कंडक्टर? मान लीजिए ये कंडक्टर है, तो आपको क्या लगता है, विल द चार्ज बी ओनली एट द आउटर सरफेस और दिस सरफेस एज वेल? बोथ? अच्छा, वेरी नाइस. दोज हु से बोथ, लेट मी आस्क यू अ क्वेश्चन, ठीक है. सो आई आस्क्ड a simple question to all of you everyone. If I give a charge q to this case which is having a cavity, where will the charge go, है ना. तो बहुत सारे लोगों ने बोला है ओनली सरफेस. स्वलेहा, मेघा सेड ओनली सरफेस. अशोक सेड ओनली आउटर सरफेस. फेलिस आल्सो सेड बोथ. ठीक है, मतलब मेजॉरिटी सेज बोथ द सरफेसेस, राइट. लेट मी आस्क यू अ क्वेश्चन एवरीवन. इफ दिस इज अ कंडक्टर, this one is our cavity, matlab this blue one is our conductor, right? So if I take any point where this blue material is present, which is a conducting material,
Can I say electric field will be zero here? Obviously, right? Conductor के अंदर electric field is zero. So anywhere in this blue surface or the blue color material which is shown, the electric field should be zero. And if you guys are saying that, sir, some charge will be there on the cavity, if you give external charge, you are saying some charge will be on the cavity ka surface, some charge will be on the outer surface. So let me ask you a simple question. If I take a Gaussian surface at the conductor, right? How much should be the electric field at the conductor, everyone? Zero. But there is a charge enclosing the Gaussian surface. समझ में आ रहा है? देखो Gaussian surface, उसके अंदर चार्ज आ गया क्या? कैविटी वाला चार्ज. There is some charge, right? The cavity charge. So how the electric field will be zero now? So that is why charge cannot go inside the cavity wala surface. All the charge will remain at the external surface only. So charge will distribute only at the external surface, even if it is a solid conductor and even if it is having a cavity inside it. Because if you are saying the charge is there, sir, inside the cavity, then what you are trying to say? You are trying to say if I take a Gaussian surface on the conductor, there is some charge enclosed because of the cavity charge. In that case, electric field will not be zero, right? In that case, electric field will be EDA Q cavity divided by epsilon naught. So electric field to zero हुआ ही नहीं. Your concept became wrong. Did you get my point? No charge will go to cavity. If you give some charge externally, then I'm talking about, right? So please write down, everyone, this very, very, very important point. Whatever notes you are making or whatever you are having right now, I'm writing here also on the PDF. If Q charge given to outer surface, है ना, outer surface को अगर हमने Q charge दिया, surface, then it remains at outer surface only, है ना, it remains at outer surface only, even if cavity is present, even if some cavity is present. आई होप यू गॉट माई लॉजिक, है ना. आई होप आपको बात समझ में आ रही है, कोई डिफिकल्ट चीज नहीं है, बिकॉज वी हैव एनफ अमाउंट ऑफ नॉलेज अबाउट कंडक्टर्स. एंड व्हेन वी हैव नॉलेज अबाउट कंडक्टर्स, अप्लाइंग द कंसेप्ट इज नॉट दैट डिफिकल्ट, है ना, आप आसानी से कर सकते हैं. So one concept is clear to us, that if you give some external charge to a conductor, then it remains outside only. There can be no charge on the cavity. So I'm just going to remove it now, है ना, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना आ जाए बाद में जब आप रिवाइज करोगे. There can be no charge on the cavity. ठीक है. चलिए एवरीवन, वेरी नाइस. अब आपको शायद थोड़ा थोड़ा फील आ रहा होगा कि कार के अंदर का एरिया थोड़ा सेफ तो लग रहा होगा आपको, है ना. थोड़ा थोड़ा फील आ रहा है क्या एवरीवन? बट अभी पूरा फील नहीं आएगा, आई विल एक्सप्लेन, है ना, द कंप्लीट फील आई विल गिव टू यू. बट आर यू गेटिंग सम पॉइंट, है ना? ओके. So sir, then first law wala logic is not very significant, that charge will repel and move away. हाँ, बट कितना रिपेल भी करेगा तो भी तो सरफेस पे ही रहेगा ना, उससे बाहर कैसे चला जाएगा, है ना. So even if you have given some external charge, fellas, it is remaining at the surface only. ठीक है. चलिए, हाँ, यहां नहीं आ सकता वो. अच्छा, इफ यू आर आस्किंग इन दैट वे फेलिस, हाँ, तो यहां पे नहीं आ सकता, है ना, केविटी के अंदर नहीं आ सकता. इट विल बी रिमेनिंग हियर ओनली. ओके. चलिए एवरीवन, लेट अस मूव अहेड नाउ. नेक्स्ट लॉ और नेक्स्ट रूल. सो देयर आर 2-3 रूल्स अबाउट कंडक्टर्स, वो हम लोग देख लेते हैं फटाफट से, है ना. द नेक्स्ट वन इज, है ना, एक नेक्स्ट रूल भी है, वो मैं आपको जल्दी से समझा देता हूं. ये तो चलो लाइटनिंग वाला स्लाइड हम बाद में देख लेंगे. अब देखो, एक रूल वो वाला हो गया ना, अभी इसको फर्स्ट रूल मत लिखो, इसको बाद में हम लिख लेंगे फर्स्ट रूल, ठीक है. अनदर रूल आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन नाउ. देखो, जस्ट नाउ, फॉर नाउ डोंट रीड दिस, ओके. प्लीज डोंट फोकस ऑन वट एवर इज रिटन हियर, मैं उस पर बात करूंगा. लेट्स से एवरीवन, नाउ आई एम सेइंग देयर इज सम चार्ज प्रेजेंट इनसाइड द कैविटी. This time you cannot change the fact. I am saying कि there is some charge present inside the cavity. अब है तो है ना, cavity के अंदर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, so that is there, है ना. Charge is present inside the cavity. यहाँ पे प्लस चार्ज है, मान लीजिए प्लस क्यू चार्ज. Then there is a rule. The simple rule says,
if inside the cavity you have some charge, then the inner surface of cavity will develop negative q charge. Induction हो जाएगा. ध्यान से सुनना, this is just a rule. I will tell you why this is happening, but yes, we have to remember this, we have to understand it happens, right? So we are going to see what has actually happened, है ना? तो experiments हुए, उससे जो पता चला उसके results हैं, and that is why we are talking about that. अब देखो, let's say there is a charge kept inside the cavity, okay? Inside the cavity, if a charge is there, then a minus charge will develop on the inner surface of cavity, opposite to this charge, minus q. Why it is getting developed, you know? Because if there is a charge inside cavity, and if you again take a Gaussian surface on the conductor, बेटा बताओ how much will be the electric field at the conductor point? यहाँ पे कितना होना चाहिए electric field at this Gaussian surface? बताइए बताइए बताइए, कंडक्टर के अंदर है, जीरो होना चाहिए ना? It will be zero perfectly. देखो how zero it will happen now. Again, E dot dA is equal to Q enclosed upon epsilon naught. So charge which is there inside the cavity is plus Q, and the inside surface of cavity has developed a charge of minus Q. So what is the total charge now? Q of cavity plus Q of surface of cavity, है ना? तो SC लिख रहा हूं मैं, surface of cavity. तो कैविटी के अंदर चार्ज प्लस क्यू एंड सरफेस पे माइनस क्यू डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट. देखो जीरो आ गया. सो परफेक्ट थिंग हियर. अब एक बार इसको पढ़ के देखो. इफ चार्ज क्यू इज प्रेजेंट इनसाइड द कैविटी, है ना, अ चार्ज माइनस क्यू will appear on the surface of the cavity. If charge q is present inside the cavity, then a charge minus q will appear on the surface of the cavity. This statement means that whatever charge is present inside the cavity, the charge of equal magnitude and opposite polarity will develop on the inner surface. ठीक है? So this is a rule. If a charge is present inside the cavity, a charge of opposite polarity will develop on the inner surface of the cavity. If I ask you a simple question now, everyone has to answer that. Let's say I have a spherical conductor which has a cavity. ठीक है, तो मान लो ऐसे कंडक्टर है अपना, इसको थोड़ा सा कलरफुल टाइप्स बना लेते हैं. देखो ये कैविटी हो गया अपना. If I say everyone that inside the cavity I have a 4 coulomb charge या 4 microcoulomb charge plus 4 microcoulomb inside the cavity, how much will be the charge on the inner surface of cavity? बताइए. If plus 4 is there at the center of the cavity, the charge on the inner surface minus 4 microcoulomb. आसान है क्या? क्या कोई रॉकेट साइंस सिखा रहा हूं मैं आपको? नहीं. एंड वी हैव अ रीजन फॉर दैट, दैट वाई माइनस 4 विल गेट डेवलप्ड, बिकॉज कंडक्टर में वी वांट इलेक्ट्रिक फील्ड टू बी जीरो. तो कंडक्टर में इफ यू टेक वन गॉसियन सरफेस, तो अंदर टोटल चार्ज विल बी जीरो. टोटल चार्ज कैसे जीरो होगा? इफ इनसाइड द कैविटी इट इज 4, द सरफेस शुड हैव माइनस 4. हो गया जीरो. ठीक है, चलिए. वेरी नाइस एवरीवन. डिड यू गेट दिस पॉइंट? चलिए चलिए बताइए एवरीवन, डिड यू गेट दिस पॉइंट? बहुत बढ़िया. ओके ओके, बहुत बढ़िया एवरीवन, वेरी नाइस. अब देखना एक और चीज. अच्छा, इंडक्शन व्हेन इट हैपेंस, राइट? डू यू ऑल रिमेंबर इंडक्शन में देयर इज नो लॉस ऑफ चार्ज और गेन ऑफ चार्ज बाय द कंडक्टर. थोड़ा याद करो, इंडक्शन में डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं होता है, याद है क्या? देखो, अगर कंडक्शन इज हैपनिंग, इफ द टू कंडक्टर्स आर टचिंग ईच अदर, then there is a net change in charge, right, from one to other. बस लालच दिया था, है ना? एग्जैक्टली, बहुत बढ़िया खुशी, यू रिमेंबर दैट लॉजिक. सो बस डराया था ऐसे आके, है ना? रॉड केम एंड उसको डराने की कोशिश करी, तो क्या हुआ था? इफ रॉड इज पॉजिटिव, all negatives came towards the rod, positives went away from the rod, but still the net charge on the conductor remained zero, right? तो बेटा, if negative charge is developed on the inner surface, can't I say positive charge will develop on the outer surface to counter this? अरे यही तो इंडक्शन का मतलब होता है ना? ऐसा थोड़ी है कि you will be able to charge the conductor now. The net charge of the conductor will still remain zero. Or else, if it had some charge initially, it will remain the same, है ना? I'll repeat this logic. ये बहुत अच्छा logic है everyone. I will just draw one more diagram and I'll try to explain it to all of you. ठीक है, देखो.
ये इनर रेडियस ऑफ द कंटेन कंडक्टर एंड दिस इज द आउटर रेडियस ऑफ द कंडक्टर, ठीक है। एंड इन दिस पार्ट लेट्स से वी हैव द मटेरियल, ये अपना कंडक्टर हो गया। इन दिस पार्ट वी हैव अ मटेरियल। इफ आई से inside the cavity I have, let's say, 2 coulomb of charge, right? Then the inner surface will have -2. Inner surface will have how much? -2. And similarly, because inner surface has -2 charge, the outer surface will again have +2 induction, and this is due to induction only. समझ में आ रहा है ना? This particular thing is due to induction, because induction will happen at the both the surfaces. If you remember, induction हमने ऐसे देखा था, two conductors we took, they were in contact to each other. One rod came which was having positive charge, then we saw the negatives got induced on this side, positives got induced on this side. There is no net transfer of charge to the conductor or from the conductor, because there is no contact between them, right? Between this rod and between these conductors, but just the charge inside the conductor is getting separated inside the conductor itself. बाहर से कुछ भी interaction नहीं हो रहा, the charges are just redistributing themselves. That's it. समझ आया क्या everyone? So outer surface will also develop +2 coulomb charge. Tell me if you got it. Come on. ठीक है, वेरी नाइस वेरी नाइस। अच्छा, यहां पे कंडक्टर में इनिशियल चार्ज कितना था? व्हाट वाज द इनिशियल चार्ज ऑफ द कंडक्टर? लेट्स से फॉरगेट अबाउट द कैविटी का चार्ज, वी हैव टेकन इनिशियल चार्ज ऑन द कंडक्टर वाज 0, राइट? नहीं नहीं, इनिशियल चार्ज ऑन द कंडक्टर वाज 0। कंडक्टर में कोई चार्ज नहीं था, इट इज इंडक्शन ऑफ चार्ज विच इज गिविंग यू -2 and +2. समटाइम्स द कंडक्टर्स आर इनिशियली चार्ज्ड ऑल्सो। अब डरो मत, ठीक है, मैं आप समझा देता हूं। अब मैं आपको एक और थोड़ा सा वैरायटी सिखाता हूं। ये वाला वैरायटी समझ में आया ना? कोई प्रॉब्लम है क्या? कैविटी में 2 कूलॉम, इनर कैविटी सरफेस में -2, आउटर कैविटी में +2। कोई परेशानी? कोई परेशानी नहीं, बिल्कुल स्मूथ चल रहा है ना? वेरी नाइस, नो प्रॉब्लम सर। आगे लाओ सर, आगे बढ़ाओ, देखते हैं क्या है आपके पास और। देखो, सेकेंड वैरायटी दैट आई हैव इज दिस। देखो, कैविटी, ठीक है, आउटर सरफेस, राइट? सो यहां पे मान लीजिए मैंने रख दिया 3 माइक्रोकुलम नेगेटिव चार्ज, या चलो पॉजिटिव ही ले लेते हैं फिलहाल, विल नॉट कॉम्प्लिकेटेड। 3 माइक्रोकुलम पॉजिटिव चार्ज, बट अपार्ट फ्रॉम दैट आउटसाइड से भी आई हैव गिवन अ चार्ज ऑफ 2 माइक्रोकुलम। ओके, अब सोचना एवरीवन, योर सर हैज टॉट इफ यू गिव एनी चार्ज फ्रॉम आउटसाइड, will it remain outside only or will it go to the cavity? सोचो सोचो, बहुत आसान है। if you have given outside charge, it will remain outside only, forget about it now. वो बाहर है, उसको बाहर ही रहने दो, है ना? बाहर का है, उसको बाहर ही रहने दो, ठीक है। so outside we already have 2 microcoulomb charge, don't forget about it please, है ना? इतना चार्ज है उसके पास, ठीक है, बहुत बढ़िया, आउटसाइड सरफेस पे। ओके, now what I'm trying to say is, if this has developed +3, how much will be developed on the this surface? यहां पे कितना आ जाएगा बताओ 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 बताओ? -3 हो जाएगा, है ना? And if this is -3, then how much will be the induced on the outer surface? Induced कितना होगा outer surface पे? +3 due to induced, and +2 is already there. +2 is already there. तो अब outer surface में if you want the total charge, it will be +5. ये देखो, आसानी तो था, कौन सी बड़ी बात है? Treat the cavity problem like a cavity problem. Cavity charge उसका negative या उसका opposite on the inner surface, उसका positive on the outer surface. But if already it is having some external charge, तो लिख दो आप उसको, है ना? Very nice everyone. अच्छा, before you considered cavity, हाँ नेगेटिव होगा तो पॉजिटिव कर लेंगे इनर सरफेस में, है ना? तो अब देखो, यहां पे बाहर कितना आ गया एवरीवन? आउटर सरफेस में कितना है अभी बताइए? 5 है क्या? यस और नो? 5। इनर सरफेस पे कंडक्टर के कितना है बताइए? इनर सरफेस ऑफ द कंडक्टर इज हाउ मच? इनर सरफेस -3। तो बेटा 5 -3 कितना होगा? 2। यस, दिस इज द एक्सटर्नल चार्ज दैट यू हैव गिवन, राइट? बाकी तो इंड्यूस हुआ है। दैट -3 +3 is तो induced. It is not even charge on the conductor. It is just separation of charge.
जो बाहर से आया वो तो 2 था बस, और वो तो उतना ही रहेगा। देखो 5 minus 3 is 2. Right everyone? Getting my point what I'm trying to say? कोई मिल गया? Got it ना? अच्छा concept है ना? It is a very nice concept and you can get questions from this. Yes, very nice everyone. Tell me if you got it. Come on guys. बताइए बताइए बताइए, समझ में आ रहा है? वेरी नाइस, बहुत अच्छे। चलो एक क्वेश्चन कर लो, आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा। A spherical conducting shell has a charge of minus 14 microcoulomb on its outer surface. तो एक spherical conducting shell है ना? Let me draw that diagram for all of you. This is your spherical conducting shell, let's say. So here you have material, obviously. Okay. He says on the outer surface, देखो, has a charge of minus 14 microcoulomb on its outer surface. यहाँ पे जो है वो minus 14. Let me write it down. minus 14 microcoulomb का चार्ज है, and a charge particle in its hollow part. तो इसके hollow part में यहाँ पे there is a charge particle which is unknown. Let's say that is small q. If the net charge on the shell is minus 10, अगर जो net charge है shell का q net on the conductor is minus 10 microcoulomb, what is the charge on the inner surface and of the particle? So what is the charge of the inner surface they are asking, यानी कि ये वाला inner surface, and what is the charge of the particle? चलिए बताइए, आसान है बहुत ज्यादा ये तो। By the way, here qnet is given. Just let me give you a small hint. qnet का मतलब हो जाएगा q on the inner surface plus q on the outer surface, है ना? qnet का मतलब यही तो होगा, total charge on a conductor, है ना बच्चों? तो that is q on the inner surface plus q on the outer surface. चलिए बताइए everyone. Okay, going to start the quiz. I hope I have given enough amount of time. तो आई थिंक आप लोग कर लेंगे। 5 4 3 2 and 1 go. Come on, come on everyone. The topic is very simple. कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। चलिए देखते हैं how many of you have given the correct answer. So फलक, स्वलेहा, प्रियेशा, मेघा, प्लवनी, गोकुल, शोभित, Ankit, Sitesh and Vikash. Everyone is correct on the fastest finger list at least. 58.82%, not bad. Good one everyone. Almost 60% have given the correct answer and 30% are at D. ओहो, यानी कि D को भी काफी significant answers मिले हैं, यानी कि +4 -4 +4 +4 माइनस, अच्छा मतलब एटलीस्ट यू न्यू कि प्लस माइनस ही होगा, है ना? इनर सरफेस एंड ऑफ द पार्टिकल। देखो बहुत आसान है। टोटल चार्ज ऑन द कंडक्टर इज हाउ मच? -10 माइक्रोकूलम, राइट एवरीवन? तो यहाँ पे आप -10 लिख लीजिए। इनर सरफेस पे यू डोंट नो, सो यू जस्ट राइट इट एज क्यू इनर सरफेस प्लस
आउटर सरफेस टोटल चार्ज पता है क्या? यस आई नो दैट, विच इज -14 माइक्रोकूलम। ठीक है, तो इसको बस आप एक बार सॉल्व करो। हाउ मच विल बी क्यू इनर नाउ? इट विल बी -10 + 14, राइट? ये -14 उस तरफ आएगा तो इट विल बिकम +14। सो क्यू इनर आ गया, देखो +4 माइक्रोकूलम, -10 + 14। कौन सी बड़ी बात थी? टोटल चार्ज ऑन द कंडक्टर का मतलब क्या होता है? क्यू इनर प्लस क्यू आउटर, दैट इज इट, राइट? कंडक्टर में तो इनसाइड चार्ज है, आउटसाइड चार्ज है। सो टोटल इनसाइड चार्ज इज +4 and outside charge is -14. If inner surface charge is +4, तो बेटा Q कितना होगा? पार्टिकल का चार्ज कितना होगा? -4, राइट? अरे यही तो सिखाया आपके सर ने आपको। इफ दिस इज -4, दिस विल बी +4। समझ आया? तो वही था आंसर, देख लो, है ना? इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड दिस विद द लॉजिक ऑफ योर इंडक्शन जो हमने अभी तक देखा है, देखो इसमें हो क्या रहा है ना? Actually, what is happening here? So he has twisted the question a bit, but still, if you go with the basics, आप कर लेंगे। Actually, what is happening here? At the center, you have -4, right? So at the surface, यहाँ पे you have +4 inner surface. तो बेटा again on the external surface, due to induction, how much will come? Point is -4, है ना? Inner surface is +4, तो बाहर कितना आना चाहिए? -4. But actually he has already given -10 to the surface, so that is why you are getting -14 in total. मैंने आपको समझाया था, जो नेट चार्ज गिवन होता है ना, जो नेट चार्ज गिवन होता है ना, वो सर ऑलरेडी तो -14 था ना। यही तो कंफ्यूज हो रहे हैं आप, यही तो कंफ्यूज हो रहे हैं आप। देखिए देखिए देखिए, मैं आपको समझाता हूं, वो ऑलरेडी नहीं था। ठीक है, देखो देखो देखो, हाँ, आई गॉट योर पॉइंट्स एवरीवन। स्नेहा का डाउट से मुझे अभी भी क्लिक हुआ कि आपको क्या डाउट आ रहा है। देखो स्नेहा, सी द वैल्यूज हियर, राइट? एक बार ध्यान से इन वैल्यूज को देखना। +3 एट द सेंटर, -3 एट द इनर स्फीयर एंड +3 आउटसाइड। ये कौन सा चार्ज है स्नेहा? ये इंड्यूस्ड वाला है। प्लीज रिमेंबर द नेट इंड्यूस्ड। नेट इंड्यूस्ड कितना होगा बताओ एवरीवन? हमेशा जो नेट इंड्यूस्ड होगा वो कितना होगा? राइट डाउन इन द चैट बॉक्स। बेटा नेट इंड्यूस्ड चार्ज ऑन अ कंडक्टर विल बी हाउ मच? नेट इंड्यूस्ड तो 0 होता है ना। अरे नेट इंड्यूस्ड तो हमेशा 0 होता है। अरे नेट इंड्यूस्ड का मतलब क्या होगा? 0 ही तो होगा। इंड्यूस्ड मतलब नो चार्ज इज कमिंग, नो चार्ज इज गोइंग, just the charges are separating inside the conductor. Are we clear on that? Tell me in the poll. Always net induced charge in a conductor is 0 because no charge is coming from outside, no charge is going anywhere, right? तो net induced तो हमेशा 0 है। तो बेटा if he is giving some net charge स्नेहा, तो वही तो एक्सटर्नली गिवन चार्ज हुआ। एंड देखो अगर आप यहाँ पे नेट चार्ज कैलकुलेट किए भी थे, है ना, तो वो कितना आया था? 2 ही तो आया था। एक्सटर्नल सरफेस पे टोटल वी गॉट 5, इफ यू रिमेंबर स्नेहा, है ना? टोटल ऑन द एक्सटर्नल सरफेस इज 5 and total on the inner surface is -3. So how much was the net? It was 2. Net is always what is coming externally, because q net is summation of all the charges on the conductor. Out of all the charges in the conductor, the net induced is always 0 ना। induced तो 0 है, तो all में बचा क्या? q induced plus q external। तो Q net का मतलब क्या होगा? Q induced तो टोटल हमेशा 0 है, ओनली Q external। समझ आ रहा है? ये लॉजिक को समझो। सो दैट इज वाई व्हेन ही हैज गिवन नेट, ओके स्नेहा, नेट का मतलब ही है कि बाहर से कितना चार्ज आया था इसमें। एनीवेज मैं आपको सिंपल लॉजिक से भी समझा दूंगा, बट बिकॉज यू हैव आस्क्ड आई एम गोइंग इनटू दैट मच ऑफ डिटेल। तो अगर ये नेट चार्ज है तो इसका मतलब है कि 10 वाज गिवन फ्रॉम आउटसाइड, -10 माइक्रोकूलम। अब देखो ये बिल्कुल फिट बैठेगा, इट विल फिट, है ना? तो हमने क्या बोला? पार्टिकल का चार्ज -4, राइट? इनर सरफेस का चार्ज +4, आउटर सरफेस का चार्ज -4, टोटल चार्ज ऑन आउटर सरफेस -14। ये देखो बन गया -14। आर यू गेटिंग द फील नाउ? मतलब ये बिल्कुल दिमाग को ओपन करने वाली चीज है, इट विल जस्ट ओपन अप योर माइंड्स, है ना? स्नेहा बताइए क्लियर हुआ अभी? तो जब भी नेट गिवन है ना बेटा, तो उसका मतलब क्या है? वो बाहर से जो चार्ज आया वो है, राइट?
सॉल्विंग फिजिक्स इज अ हैप्पी थिंग विथ यू, या आई एम ग्लैड टू नो दैट। आ गया ना समझ में, चलो। बट तुम्हारा भी वही डाउट था, ओके ओके रुचिता, नाइस, पूछा करो डाउट, है ना। अब देखो, लेकिन क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका बहुत आसान था वैसे तो, मतलब क्यू नेट को आप ऐसा भी लिख सकते हैं, क्यू इनसाइड प्लस टोटल क्यू आउटसाइड, बिकॉज एग्जामिनर ने यहाँ पे ऐसे घुमाया है आपको कि उसने टोटल आउटसाइड चार्ज दिया है, आप इसको नेट समझ लेते हैं, दैट इज द डिफरेंस, है ना। इफ ही हैज गिवन टोटल चार्ज विच इज ऑन आउटसाइड सरफेस, इट इज नॉट नेट चार्ज, नेट चार्ज तो कुछ और है। ओके चलिए, बहुत बढ़िया, आई एम रियली हैप्पी दैट यू अंडरस्टूड दिस चैप टॉपिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में द मोस्ट डिफिकल्ट टॉपिक इज कंडक्टर्स, एंड 90% ऑफ द स्टूडेंट्स इवन इफ दे आर इन जेई और नीट, वो वहीं पे परेशान होते हैं। बट आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया, ठीक है। शेल एंड पार्टिकल पूछा है, हाँ ना, तो बेटा शेल एंड पार्टिकल पूछा है, हाँ तो शेल देखो +4 है एंड पार्टिकल -4 है, वही तो मैं भी कह रहा हूं तब से, शेल +4 पार्टिकल -4, है ना। फलक इज आस्किंग सर कैपेसिटर बाकी है ना, एक्चुअली कोचिंग्स में कैपेसिटर बाद में कराते हैं, ठीक है। आपका जो एनसीईआरटी है ना, उसमें कैपेसिटर इज गिवन जस्ट आफ्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, but before understanding current electricity, understanding capacitor is a big deal, or you can say if you understood current electricity, then capacitor can be easier. So to answer Falak's question, capacitor will be done after current electricity, and this is how we teach in NEET or JEE. हालांकि आपके एनसीईआरटी में capacitor is the part of electrostatics, but you will not be able to understand anything in capacitor if you don't understand current electricity, believe me, है ना। तो ऐसे ही चलने दो, सारे बैचेस में ऐसे ही चल रहा है, पहले करंट करेंगे देन कैपेसिटर। ओके, हाउ इज द जोश एवरीवन, पॉजिटिव है क्या सारा एटीट्यूड, बताइए। एवरीथिंग इज पॉजिटिव, एवरीथिंग इज फाइन, है ना। चलिए, वेरी नाइस, डन एंड डस्टेड, या। तो कंडक्टर्स इज फिनिश नाउ, आई विल टेल यू सम वेरी मिसलेनियस स्मॉल स्मॉल टॉपिक्स, ठीक है, छोटे 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 स्मॉल स्मॉल टॉपिक्स में बता देता हूं आपको। जैसे कि देखो, एक बार क्वेश्चन आया था, a neutral spherical conductor is there with a concentric spherical cavity as shown in the figure, positive charge q is kept at the center, show charge induction। बहुत आसान है, show charge induction बोला है, देखो यहाँ पे प्लस है बच्चों, तो यहाँ पे आ जाएगा -q, राइट, हियर यू विल राइट -q, ये लीजिए डन, और यहाँ पे आ जाएगा +q, तो हियर यू विल राइट +q, डन है क्या। वैसे मुझे इसमें लिखना नहीं चाहिए था, बिकॉज नेक्स्ट स्लाइड में तो आंसर था ही, if it is possible I'll remove it so that आपको रिवीजन में काम आ जाए, है ना। so I have removed it everyone, ताकि इट विल बिहेव एज अ क्वेश्चन ओनली, ये लो हटा दिया। तो देखो यहाँ पे नेट चार्ज लिखा है, आर यू हैप्पी विद दिस, देखो +q एट द केविटी का सेंटर, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस प्लस। इसमें अगर आपसे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ ले, टेल मी व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इन द कंडक्टर, यहाँ पे कितना होना चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड, व्हाट शुड बी द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर, बेटा 0 होना चाहिए ना। वंस दे हैव आस्क्ड डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और डायग्राम ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, देखो डायग्राम ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे बनेगा, ध्यान से सुनना मेरी बात। Always remember, for any conductor, the electric field is always normal to the conductor। यानी कि देखो यहां पे तो इलेक्ट्रिक फील्ड है एंड दिस इज नॉर्मल टू द कंडक्टर, राइट एवरीवन, देखो ये नॉर्मल टू द कंडक्टर जा रहा है ऐसे, दिस इज ऑल्सो नॉर्मल टू द कंडक्टर, ये सब नॉर्मल टू द कंडक्टर है, राइट, पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द कंडक्टर। Inside the conductor don't show any electric field line because there is no electric field obviously, and again outside the conductor ऐसे दिखा दो normal to the conductor, ये रहा, है ना, again perpendicular, this is the electric field line for conductor with a cavity। चलिए बताइए क्लियर हुआ क्या, कंडक्टर विथ अ कैविटी, दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, ठीक है। ओके वेरी नाइस, आगे बढ़ते हैं। फिर एक बार क्वेश्चन आया था, चलो ये तो हो गया हमारा, है ना। वंस दे आस्क द क्वेश्चन, same logic, but they gave the charge eccentric charge, charge is not there at the center, charge is slightly eccentric, and then they asked tell us the electric field lines। अब बहुत सिंपल लॉजिक है, वैसे तो आपको यहाँ पे दिख रहा है ना, and I hope you will be able to understand it। there is no electric field on the conductor first of all, right, and all the electric field lines leaving this point charge will be going towards the conductor normally। तो बेटा अगर नॉर्मली जाएंगे तो ऐसी तो लाइंस बनाओगे आप, दीज आर ऑल नॉर्मल लाइंस, देखो ये सब 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे सरफेस के साथ, ठीक है। सो इनसाइड पॉइंट पे, लेट्स से दिस इज द इनसाइड पॉइंट, लेट्स से दिस इज द आउटसाइड, यहाँ पे अगर चार्ज है ऑल द लाइंस विल बी गोइंग नॉर्मली लाइक दिस। आर यू गेटिंग दिस लॉजिक एवरीवन, ये देखो ये सब नॉर्मल है
है ना. So all the normal electric field lines will be there, and this is how you will draw it. You must have seen such diagrams in DC Pandey or somewhere else. शायद DC Pandey में नहीं होगा इतना डिटेल में, but फिर भी don't be scared of these things now. Okay, are we clear on this? This is miscellaneous topic, something extra I am giving to all of you so that कुछ भी अगर क्वेश्चन उससे आ गया तो आप कर सकते हैं, है ना. चलिए everyone, apart from this, if you remember, I have already told when you have this kind of a डिस्ट्रीब्यूशन, पोटेंशियल कैसे लिखते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे लिखते हैं, आपको शायद याद होगा, है ना. इनसाइड पॉइंट पे अगर आ रहा है कंडक्टर के, देन के क्यू अपॉन रेडियस, एंड इफ इट इज आउटसाइड पॉइंट के क्यू अपॉन स्मॉल आर. कुछ याद आ रहा है क्या एवरीवन? इनसाइड पॉइंट पे के क्यू अपॉन कैपिटल आर, आउटसाइड पॉइंट पे के क्यू बाय स्मॉल आर. ठीक है. पायल इज सेइंग सर आपने उल्टा लिखा है क्वेश्चन में, प्रीवियस क्वेश्चन में देखिए प्लीज, +4 होगा इनर. मैंने उल्टा लिख दिया है क्या? हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, एरर्स हो जाते हैं, है ना. सो -4 इज द इनर, ओके, +4 इज द इनर सरफेस. सरफेस की बात कर रहा हूं मैं, ये +4 है, एंड -4 इज द पॉइंट चार्ज, और उसके बाद बाहर फिर से -4. पायल, इज इट फाइन नाउ? यही कहना चाहते हैं आप? इनर सरफेस है ना, इनर सरफेस +4 है, एंड इनर पॉइंट चार्ज इज -4. पायल, आर वी क्लियर ऑन दैट? या चलिए, बहुत बढ़िया सर. थर्ड रूल फॉर इंडक्शन ऑफ मेटल्स, हाँ अभी करा रहा हूं वो, है ना. दैट इज द लास्ट थिंग लेफ्ट नाउ. ओके, सो नाउ यू विल अंडरस्टैंड योर थर्ड रूल, एंड थर्ड रूल इज बेस्ड ऑन योर इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग. देखो, लिटरली स्पीकिंग, दिस थर्ड रूल इज जस्ट फॉर योर यू कैन से रेफरेंस ओनली, एंड जस्ट फॉर योर नॉलेज. उस पर डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं आते हैं. लेट मी एक्सप्लेन. सो now you will understand the electrostatic shielding in a great manner. देखो, so let's say everyone, and this is miscellaneous, okay, ये miscellaneous topic है, not very important from NEET point of view, but even if you know, it will help you. देखो everyone, let's say apart from this conductor, है ना, मान लो यहाँ पे एक कंडक्टर है, there is a outside charge as well, which is small q. Okay, outside charge है. Consider that charge which is like a lightning, है ना, वो जो फील्ड क्रिएट कर रहा है, इट इज योर लाइटनिंग, लेट्स से, तो आउटसाइड में है वो. ठीक है. देखो एवरीवन, इफ आई से देयर इज अ कैपिटल क्यू चार्ज हियर, देन अकॉर्डिंग टू आवर लॉजिक देयर विल बी अ माइनस कैपिटल क्यू चार्ज हियर, राइट एवरीवन. एंड because of this minus q which is induced here, there will be a plus q as well. यहाँ पे एक प्लस क्यू चार्ज भी होगा. ठीक है. Here the problem is if you want to consider any point of the conductor, electric field should be equal to 0, right? But here there is a problem. There is an external charge as well, which is also creating some electric field, है ना, वो भी electric field produce कर रहा है. Technically speaking, total electric field at this point of conductor, it will be equal to 0, and you can easily write E due to capital Q, this one, plus electric field due to minus Q, that is inner surface, plus electric field due to plus Q, outer one, and plus electric field due to this small q should be equal to 0. Am I speaking the truth? सही बात है क्या? बिल्कुल. Net electric field 0 होगा. All the charges are trying to create their own electric field, and total electric field should be 0. But we should not forget, they look like donuts, huh? We should not forget this plus q and minus q, they are like action reaction pairs. वो अपने आप में ही मस्त हैं. सही बात है क्या? They are like action reaction pairs. And more technically speaking, this minus q was developed so that it can cancel out the electric field of this q charge. वही तो हमने बोला था. If I take a Gaussian surface here, I said whatever electric field this q has developed, who will counter that electric field? This minus q, so that there is no net charge inside the conductor. तो इनका तो अपना ही कहानी चल रहा है ना. दे आर द एक्शन रिएक्शन पेयर्स, ऐसा कह सकते हैं आप. दे आर देयर ओन एक्शन रिएक्शन पेयर.
इनको दुनिया से मतलब नहीं है ना, कि बाहर कौन सा चार्ज रखा है. व्हाट इज हैपनिंग, minus q says whatever electric field q charge has generated which is at the center of the cavity, I am going to cancel it out. These two will cancel out the electric field, इनका net हो जाएगा 0 because of these two. Now the battle is up to plus q and small q. So this plus q rearranges itself in such a manner that it cancels the electric field of small q. In short, the shield, the cavity has nothing to do with the external charges. External charges का electric field will be taken care by the outer charge only. So that is why, because there is no effect of external charge, the internal cavity of the conductor remains safe from all the lightning and all. तो इसीलिए आपका कार इज सेफ है ना, बिकॉज वो अंदर वाले को अंदर से ही मतलब है. If there is external charge q and if it is creating any electric field, this capital charge q on the surface redistributes itself in such a manner that it cancels out this electric field. तो बाहर वाले आपस में अपनी लड़ाई करते रहते हैं, अंदर वाले आपस में अपनी लड़ाई कर लेते रहते हैं ना. सो इंग्लिश में इफ आई से दैट सेम थिंग, इंग्लिश वाले को लगा होगा ये क्या हो गया, क्या बोल दिया सर ने. एक्सटर्नल चार्जेस दे आर फाइटिंग देयर ओन बैटल to make the electric field zero at the conductor, and internal charges are fighting their own battle. They are the two different departments, and that is why the lightning cannot produce any effect on the cavity. So if you are sitting inside a car, you are actually safe, है ना. तो ये देखो इसमें भी यही चीज लिखा था, स्टील फ्रेम ऑफ हार्ड टॉप्ड व्हीकल कैन प्रोटेक्ट यू फ्रॉम लाइटनिंग, है ना. इफ यू आर नॉट टचिंग द मेटल, ऑब्वियसली यार मेटल को टच कर लोगे तो उसमें तो चार्ज है ढेर सारा. द लाइटनिंग चार्ज ट्रेवल्स अराउंड द आउटसाइड ऑफ द व्हीकल, है ना, वो आउटसाइड से ही डील करता है. इट डज नॉट डील विद द इनसाइड ऑफ द व्हीकल, क्रिएटिंग अ पार्शियल फैराडेज केज. केज मतलब वही शील्ड है ना, फैराडेज शील्ड भी बोलते हैं इसको, प्रोटेक्टिंग द ऑक्यूपेंट्स इनसाइड. टेल मी इफ यू गॉट इट एवरीवन. ये सब एक्स्ट्रा नॉलेज है बाय द वे, है ना, जस्ट टू फील द सब्जेक्ट, थोड़ा फील करने के लिए कर रहे हैं हम लोग. बट यस, प्लीज रिमेंबर द कैविटी चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी कैंसल्ड आउट बाय द इनर सरफेस का इलेक्ट्रिक फील्ड. इनर सरफेस नेगेटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड, they will cancel each other, they are the action reaction pairs. And for outside charge, if it is creating any electric field like this lightning, that will be taken care by the outer surface charge of the body. ठीक है, चलिए, वेरी नाइस एवरीवन. तो अभी जाके हमारा कंडक्टर ऑलमोस्ट फिनिश हो गया है. ठीक है, वन मोर स्मॉल टॉपिक इज देयर विच इज इलेक्ट्रिक प्रेशर. अब ये इलेक्ट्रिक प्रेशर क्या होता है? डू यू ऑल रिमेंबर आई showed you one GIF in which one guy was sliding on a water park and उसके बाल ऐसे खड़े हो गए थे. Do you remember that? याद है ना. हाँ, तो वो कुछ प्रेशर लगा रहा है ना बॉडी पे, आउटर सरफेस पे देयर इज सम प्रेशर. तो आई टोल्ड यू दैट टाइम, आई थिंक फेलिस आस्क्ड दिस डाउट कि सर मतलब क्या न्यूक्लियर फोर्सेस बचा रहे हैं, कौन से फोर्सेस बचा रहे हैं बॉडी को. आई टोल्ड यू इफ द बॉडी इज नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग इट कैन ब्रेक ऑल्सो बिकॉज ऑफ दिस प्रेशर. दैट प्रेशर, या फिर you can say force per unit area on any conductor is given by sigma square upon 2 epsilon naught. Kindly just remember it. Okay, so electric pressure on any conductor, sigma square upon 2 epsilon naught. There is rare chance that they will ask this, but ये important formula है तो हमें छोड़ना नहीं चाहिए इसको, है ना. So any conductor will be given, charge density will be given, epsilon naught you guys know from ancient civilization. Put all the values, get the electric pressure. For example, find the electric pressure due to uniformly distributed charge of 6 microcoulomb on a sphere of radius 3 centimeter in its immediate vicinity. Immediate vicinity मतलब the electric pressure is just outside the conductor, उसी के आसपास. Immediate vicinity मतलब the very nearby neighborhood you can say, है ना. तो क्या करेंगे आप, सिंपल फॉर्मूला है सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट. सिग्मा इज द चार्ज डेंसिटी, है ना. ओके, या आई टेल यू दैट, गोकुल डोंट वरी. सो देखो ध्यान से, डेल्टा एफ अपॉन डेल्टा ए, है ना. सो सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट. सिग्मा क्या होता है, चार्ज अपॉन एरिया, and it is a sphere. So what is the area of the sphere? It is charge upon area will be 4 pi r square.
तो चार्ज अपॉन 4 pi r square divided by 2 epsilon naught you will do and you will get the electric pressure. थोड़ा calculation है, but the question from electric pressure will be simple like this. Tell me if you got it everyone. Just remember the formula in case a question comes from it. आप कर पाएंगे आसानी से, है ना? चलो, very nice everyone. Stopping the poll. देखो, गोकुल is curious about how the outside and surface charge get cancelled out. चार्ज नहीं, उनका इलेक्ट्रिक फील्ड कैंसिल होता है. देखो, actually the outer charges on the sphere, they redistribute themselves in such a manner that they can cancel out the electric field of the external charge. I know this is slightly confusing to listen to, है ना? थोड़ा अब ये एडवांस के उस तरफ हम लोग जा रहे हैं, but yeah, I can still like give you the clear picture of it. So you said this plus q, this minus q, they have fought their own battle, right? Gokul, इसमें कोई doubt है क्या? This plus q, this minus q, we are not going to consider them, right? अब देखो यहाँ पे plus q charge है, right, Gokul? And here you have a positive outside charge. Here what will happen? This plus q charge would have been like distributed uniformly if this plus q charge was not there, right? But if this plus q charge is there, then more charge will be on this side. Okay, so that more charge will be on this side, less charge will be on this side. Repulsion भी कह सकते हैं आप. And whatever field this plus q is created, let's say somewhere here in this direction, that field these many plus q will create in this direction, and they will cancel out each other. So redistribution of charge is also one topic. So redistribution of charge will happen. The outer surface charge, they are going to redistribute themselves so that they can cancel the net electric field which is coming from outside. Okay Gokul, I hope you got it. Tell me. ठीक है, चलो, वैसे ये थोड़ा सा डिटेल्ड था, इतना जरूरत नहीं है आपको, ठीक है? Whatever I have told you at the last 5-10 minutes, इतना ज्यादा नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, but yes, if you get it, it's good thing, right? चलिए, okay, आगे बढ़े क्या? Tell me everyone, shall I move ahead now? ठीक है, चलो, लास्ट टॉपिक है कंडक्टर में, छोटा सा. तुम लोग सोच रहे हो कि सर कब से बोल रहे हैं लास्ट टॉपिक है, कंडक्टर खत्म ही नहीं हो रहा है ना? बट देखो, कंडक्टर इज अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक. अगर किसी ने आपको कंडक्टर अच्छे से पढ़ाया, मैं कोशिश कर रहा हूं अच्छे से पढ़ाने का, तो आपको मजा आ जाएगा, क्योंकि बहुत अच्छा टॉपिक है ये, है ना? सर प्लीज मे यू आस्क गौरव सर टू रिपीट स्लाइड 17. सडनली उनका वॉइस एंड वीडियो डिसअपीयर हो गया था. अच्छा सर, एक बात बताओ, जब लाइटनिंग होगी तो हाउ विल वी ओपन द कार टू सिट इनसाइड? बेटा, अगर लाइटनिंग हो चुकी है तो एनीवेज यू विल नॉट बी एबल टू ओपन एनीथिंग, है ना? कार का डोर तो भूल जाओ. सो आई एम सेइंग इफ लाइटनिंग का माहौल बना हुआ है, तब अगर आपको खुद को बचाना है तो कार के अंदर जाके बैठ जाओ, फिर लाइटनिंग होने का वेट करो, फिर जब लाइटनिंग होगा तो यू विल बी सेफ, है ना? कह रहा है सर लाइटनिंग हो रही है चारों तरफ से, पबजी की जैसे गोलियां चल रही हैं, कैसे खोलेंगे? चलो ठीक है सर, हम लोग डाइपोल इससे में करेंगे ना? हाँ, अभी डाइपोल करना है, ट्राई करते हैं, कितना टाइम बचता है उस पर डिपेंड करेगा, है ना? फेलिस बेटा, एक काम करना, आप स्लाइड 17 के लिए ना रिकॉर्डिंग देख लेना. आई एम रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम, ठीक है? आई होप यू कैन डू दैट. छोटी सी बात है वैसे, और ये आउट ऑफ सिलेबस चीज है, फॉर लेट मी टेल यू ऑल्सो, बट एक बार आप अपनी इंटरेस्ट के लिए देख लेना, ठीक है? फेलिस प्लीज सी द रिकॉर्डिंग. चलिए एवरीवन, सो लेट्स मूव अहेड नाउ. एंड डीसी पांडे में मैं आपको बता दूं, देख के मेरे सामने ही पड़ा है कि अब ऑलमोस्ट वी हैव फिनिश्ड एवरीथिंग, ठीक है बच्चों, फ्रॉम डीसी पांडे. सो प्लीज स्टार्ट डूइंग द क्वेश्चंस नाउ. एंड मैं आपको कुछ टॉपिक्स देने वाला था, बट टॉपिक देने की जरूरत नहीं है, बिकॉज एवरीथिंग इज फिनिश्ड, तो यू कैन डू एवरीथिंग, ठीक है? सब कुछ कर लो यार, सब कुछ कर लो बस, ठीक है? दैट इज व्हाट आई हैव टू से. प्लीज स्टार्ट डूइंग द क्वेश्चंस, राइट एवरीवन? लास्ट टॉपिक इन कंडक्टर, and then we'll be moving towards the dipole. Dipole is a very simple topic, बहुत smooth है, and you will really enjoy the dipole topic. थोड़ा सा और दिमाग लगाने वाला टॉपिक कर लें क्या? Shall we complete this conductor today everyone? क्या कहते हो यार? Joining the conductors, लास्ट टॉपिक है, प्यारा सा छोटा सा, ठीक? चलो, थैंक यू फॉर योर पेशेंस. सर शॉप्स आर क्लोज्ड.
हाँ, वी विल फिनिश इट, है ना, डोंट वरी यार, कई बार ऐसे टॉपिक्स आते हैं, आई अंडरस्टैंड। देखो, टचिंग और कनेक्टिंग द कंडक्टर्स, तो टचिंग और कनेक्टिंग में आखिर होता क्या है, ठीक है। देखो, से एवरीवन यू हैव अ कंडक्टर यहां पे, एंड इट हैज अ चार्ज q ऑन द surface, radius is r, ठीक। And then you have a conductor somewhere here which has a charge 2q on the surface, total charge, net charge आप कह सकते हैं 2q on the surface, and it has a radius of 4r। तो इसको थोड़ा बड़ा बनाना चाहिए था, but it's okay, right? 4r is the radius, r is the radius, q is the charge, 2q is the charge। बस एक बात बताओ मुझे आप लोग कि इसका पोटेंशियल कितना होगा ऑन द सरफेस, व्हाट इज द पोटेंशियल ऑफ दिस कंडक्टर? कैन आई राइट बच्चों के क्यू बाई आर, लिख सकते हैं क्या? अरे लिख सकते नहीं सकते बताओ, के क्यू बाई आर लिख सकते हैं। इसका पोटेंशियल कितना लिखेंगे आप, पोटेंशियल ऑफ द सेकेंड वन? के 2q अपॉन 4r, है ना बच्चों? सो पोटेंशियल फॉर सेकेंड वन इज हाउ मच? के क्यू अपॉन 2r। यू विल लर्न समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट टुडे। इफ यू सी, करेक्ट करेक्ट पायल, टोटल चार्ज है कंडक्टर का क्यू इंटरनेट प्लस क्यू एक्सटर्नल, सही है। इफ यू सी एवरीवन, though this conductor has more charge, 2q amount of charge, and this conductor has only q amount of charge, but potential of this conductor is more। इसका चार्ज कम है but potential is more, इसका चार्ज ज्यादा है but potential is less। now let me tell you about connecting these two। if you take a conducting wire, यहां से इसको कनेक्ट किया ऐसे, है ना, सोल्डरिंग कर दी इसकी, और यहां से ड्रर इसको ऐसे कनेक्ट कर दिया, व्हाट विल हैपन, व्हाट डू यू थिंक? अपनी अपनी सोच बताओ मुझे, क्या लगता है आपको क्या होगा? एक में क्यू चार्ज है, एक में 2q चार्ज है। डू यू थिंक चार्जेस विल फ्लो? चार्जेस विल फ्लो, है ना, फ्रॉम वेयर टू वेयर, 1 to 2 और 2 to 1? लेट्स से दिस इज 1, दिस इज 2, 1 to 2 और 2 to 1? समझ सेइंग 1 to 2, कुछ लोग कह रहे हैं 2 to 1। हाँ देखो, लिसन टू मी वेरी केयरफुली, ओके। पोल करने बोल रही है तरुणी, हाँ चलो कोई नहीं, इस बार पोल नहीं कर रहे। प्लीज डू रिमेंबर, charges will flow always from high potential to low potential, हमेशा याद रखना, they will always flow from high potential to low potential until the potential becomes same, potential becomes equal। इतनी छोटी सी बात आप याद रखिए, ठीक है। so charges will flow from higher potential to the lower potential until the potential of the two conductors becomes exactly the same। in this diagram I am not writing the direction of flow of charge, ताकि आप रिवाइज करेंगे तो आपको पता चल जाए। again I am drawing the situation here, ये q है, ये r है, this one is having how much charge, 2q, and this radius is 4r, and we said ki some charge will flow from where to where beta? This is potential 1, this is potential 2, v1 is greater than v2, so direction will be this। are we clear on that everyone? At least are we clear on higher potential to lower potential thing, है ना? Very nice। now the question is, find out the charge flown from first one to second one। उसके लिए आप क्या करेंगे, देखो बहुत सिंपल है। if q amount of charge leaves the first conductor, q amount of charge is leaving the first conductor, then how much charge will be left here? q minus a small q, है ना यार, capital Q minus small q, final charge left on conductor number 1। and similarly what will be the charge on the second conductor now? 2q plus q। देखो direction, small q is going away from here, so it will reduce by small q, and this will increase by small q because the q is reaching here। then if you write down potential of the first conductor, it will be k q minus a small q divided by r। radius तो change हुआ नहीं है, radius is exactly the same। and if you write down the potential of this one, है ना, तो आप इसको कितना लिखेंगे आप, k, है ना। अब टोटल चार्ज इसमें कितना है, 2q plus a small q divided by radius is how much, 4r। ठीक है, इतना हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लो, देखो r and r got cancelled out, this you will write as, देखो k q minus k small q is equal to, ये कितना हो जाएगा देखो, 2kq
प्लस के क्यू। जो भी कैंसिल हो रहा है कैंसिल करो एंड टेल मी द आंसर एवरीवन, हाउ मच इज द चार्ज फ्लोन क्यू फ्रॉम 1 to 2? 2q/5 आया स्नेहा का आंसर, बाकी लोगों का क्या आ रहा है? सो स्मॉल के क्यू प्लस के क्यू, तो ये बन जाएगा आपका 2k स्मॉल क्यू, है ना, एंड दिस विल बिकम आपका, हाँ 2q/5 आ रहा है क्या सभी का? वेरी नाइस एवरीवन, सो द आंसर विल बी 2Q divided by 5. This much charge should flow from one conductor to other conductor because finally potential should be same. What have I written here? मैंने क्या लिखा है? Potential should be equal. That's it. Tell me, ये तो बहुत easy topic था ना? I think आपको आसान लगा होगा ये वाला टॉपिक। हाँ यहाँ पे 4 था ना, राइट? आई फॉरगॉट टू राइट द 4 हियर। यहाँ पे 4 इस तरफ आ जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, राइट? एंड देन यू विल गेट 2Q/5. बेटा फीलिंग पॉजिटिव है? टेल मी, इज द फीलिंग पॉजिटिव? एंड दिस क्वेश्चन इज मोर इंपॉर्टेंट फ्रॉम नीट पॉइंट ऑफ व्यू, लेट मी टेल यू, राइट? वो जो हमने अभी बड़ी बड़ी बातें करी ना कंडक्टर की, कार में रख के आपको बचाया लाइटनिंग से, वो थोड़ा सा कम इंपॉर्टेंट था, बट ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है? बहुत अच्छा था सर, इससे क्वेश्चन भी बहुत पूछा है नीट में, मैंने एग्जैक्टली एग्जैक्टली दे आस्क मेनी क्वेश्चंस फ्रॉम हियर। अखंड पॉजिटिव है। सर आपका संडे मोटिवेशनल सेशन है क्या? हाँ बेटा, मेरा संडे का मोटिवेशनल सेशन है, करेक्ट करेक्ट। एक बार फिर से स्लाइड 29, 29 मतलब यही वाली स्लाइड, राइट मुस्कान? बेटा देखो कुछ भी नहीं है, इनिशियली दे हैड डिफरेंट चार्जेस एंड डिफरेंट पोटेंशियल्स, करेक्ट मुस्कान? It had charge of q, radius of r, so potential was kq/r. Another one had 2q charge, 4r radius, so this is the potential of this, kq/2r. You can easily see Muskan, the second one has half the potential of the first one, yani ki v1 is greater than v2. If you connect two conductors by a conducting wire, then always charge will flow from higher potential to lower potential until the potential of both the conductors becomes equal. So he asked, if that is the case, then tell me how much is the charge flowing so that they have the equal potential later on. We assumed q amount of charge from first conductor is leaving and it is going to the second conductor. So how much will be the charge left on the first conductor now? Capital Q minus a small q. And how much will be the charge left on the second conductor? 2q was the initial charge plus q, right? Extra plus q charge came. Now potential of this one is kq/r. Potential of this one is kq/r. Q हमें पता है. Equated both the potentials because they are connected by a plain wire. Got the answer of charge flown as 2q/5. अब बेटा they can also ask in the question, tell me how much charge is finally left in the first conductor. क्या करोगे? q minus 2q/5. Getting my point? Finally left. हाँ, कनेक्ट करने के बाद पोटेंशियल सेम होगा, करेक्ट, बिल्कुल सही है। सो फाइनली लेफ्ट कितना आ जाएगा? q minus 2q/5, दैट इज 5 minus 2 3/5. एंड फाइनली लेफ्ट ऑन द सेकेंड कंडक्टर 2q plus 2q/5, है ना? फीलिंग नेगेटिव है सर तब ना कॉन्सेप्ट अट्रैक्ट करेगा। वाह वाह अदिति वाह, क्या बात बोली है सर। कंफ्यूज्ड इन फाइंडिंग द चार्ज लेफ्ट इन द V2 सर, कैन यू एक्सप्लेन हाउ? प्लस Shobhit, if you have 5 rupees, if I give you 2 rupees more, how much will you have? In my school, they taught 7. So similarly, if this conductor had 2q charge, it got extra q charge, how much will be left? 2q plus capital Q, right? Small q. अरे कुछ नहीं है, सिंपल एडिशन है यार। पहले से चार्ज 2q था, उसमें q चार्ज किसी ने और दिया, तो फाइनल चार्ज कितना हो जाएगा? 2q plus स्मॉल q, है ना बेटा? देखो जिसका भी दिमाग अगर गर्म हो रहा है, कंडक्टर इज अ टॉपिक जहां पे हीट थोड़ी ज्यादा होती है, थोड़ा सा पानी पी लो, है ना, इट विल बी फाइन। चलिए फाइन, आगे बढ़े। बच्चों वाला एग्जाम्पल, वाह, बच्चों वाले एग्जाम्पल से ही समझ में आता है। देखो समझ में आ गया शोभित को, है ना? कोई नहीं, चलिए आगे बढ़ते हैं एवरीवन, है ना? एक बात बताओ यार, अर्थिंग के बारे में सुना है कभी? मैंने तुम लोगों को मेरी अर्थिंग वाली कहानी सुनाई थी। जब मेरे टीचर मुझसे पूछते थे ना, बेटा अर्थिंग के बारे में सुना है? मैं बोलता था सर देखा भी है, महसूस भी किया है, थैंक्स टू माय ब्रदर।
टोल्ड यू दैट स्टोरी राइट। बिल्कुल यहां से करंट पास होके पूरी बॉडी से निकल के जमीन में चला गया था। तो अर्थिंग तो बहुत स्ट्रांग है मेरा मतलब टॉपिक है ना। खैर, यू रिमेंबर दैट राइट। चलो आपको हम पढ़ाते हैं अर्थिंग राइट। देखो सबसे पहले अर्थ इज कंसीडर्ड एज अ न्यूट्रल कंडक्टर। प्लीज रिमेंबर दैट ओके। अर्थ इज अ न्यूट्रल कंडक्टर। ऐसा नहीं है कि अर्थ के पास नेगेटिव चार्जेस नहीं है, पॉजिटिव चार्जेस नहीं है। अर्थ हैज इक्वल अमाउंट ऑफ नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्जेस एंड दैट इज व्हाई इट इज न्यूट्रल कंडक्टर। तो ये मैंने क्या लिखा है यहां पे, अर्थ ऑलवेज द पोटेंशियल ऑफ अर्थ विद जीरो। रीजन क्या है बेटा, न्यूट्रल है, नेट चार्ज इज जीरो एंड यू कैन कंसीडर दिस एज अ सॉलिड कंडक्टर है ना, सॉलिड है ये। तो दैट इज व्हाई यू कैन राइट के क्यू बाई आर विद द पोटेंशियल, पोटेंशियल जीरो। तो कई बार आप ऐसे ड्रॉ करते हैं ना सर्किट को, तो यू विल शो दिस सिंबल, इसका मतलब होता है अर्थिंग। हैव यू सीन दिस बिफोर एवरीवन? दिस इज द साइन ऑफ अर्थिंग। अर्थिंग मींस द लाइन इज कनेक्टेड टू द अर्थ। whenever that kind of a thing you will see in your life, वहां पे पोटेंशियल जीरो लिख देना। क्या लिखोगे वहां पे, पोटेंशियल जीरो। इवन इफ यू हैव नॉट सीन दैट बिफोर, डोंट वरी, है ना, अभी समझ लो, कोई बात नहीं, हम पढ़ने ही तो आए हैं यहाँ पे। सो पोटेंशियल विल बी जीरो इफ अर्थिंग इज देयर एंड दिस इज द सिंबल ऑफ अर्थिंग, है ना। थोड़ा सा लाइंस को ऐसे बना लो डिक्रीजिंग ऑर्डर में, इट विल लुक गुड एंड यू विल गेट मोर मार्क्स इन द बोर्ड्स, नॉट हियर। तो पोटेंशियल इक्वल टू जीरो राइट, ठीक है। Now I'm going to teach you what happens if you earth a conductor. अगर आपने कंडक्टर उठाया, उसको अर्थ कर दिया। So earthing of a conductor, what happens when you earth the conductor? ठीक है, तो देखते जाना everyone. Let's say you have a conductor. Okay. Charge is capital Q, radius is a small r. Only for the first time in the class, while earthing this, I am drawing the earth itself. Otherwise every time I'm not going to draw the earth. आपको पता है मैं क्या ड्रॉ करूंगा, ये। If I draw this, you will understand this is earthing, right? Right now I'm going to draw because this is the first time we are doing this topic. तो पहली बार के हिसाब से मैं ऐसे ड्रॉ कर देता हूँ अर्थ। थोड़ा बड़ा बना दिया, वैसे रिलेटिव साइज विल बी वेरी हाई, है ना। नो कंडक्टर वी हैव which is relatively of this size to the earth. Conductors are very small. So this is the earth, right? And this is the radius of earth. Beta, radius of earth, I think all of us know, 6,400 kilometer. And if you have a conductor, how much maximum size you will make? 1 meter, 2 meter? उससे बड़े कंडक्टर को रखोगे कहाँ पे, है ना, उसके लिए बिल्डिंग बनानी पड़ जाएगी। So conductors are quite very small as compared to the earth, or we should say very 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 small as compared to radius of the earth. ठीक है, अब देखो ध्यान से। If this is of q charge and radius is r, तो बच्चों what is the initial potential of this? It will be kq divided by r. बिल्कुल बोल सकते हैं हम लोग ऐसा, है ना। And imagine what is the potential of this earth? Zero, है ना। अब देखो ध्यान से, if we say when they are connected, obviously the conductor is higher potential, right? So q amount of charge will flow from conductor to the earth because earth is at lower potential. When this q amount of charge flows for some time, for some instance, what is the charge left on the conductor? We will say v1 will be equal to kq minus q divided by r. Got it everyone? यही तो अभी किया था ना। q amount of charge has left, so you'll write here it will be q minus q, the final charge. And for very small duration of time, I'm considering here q amount of charge is there on the earth. The moment charge flew, we are just writing the potential of earth. उस मोमेंट पे क्या लिख लेंगे, के क्यू अपन आर ई। बाय द वे इट विल बिकम जीरो आफ्टर सम टाइम, है ना। At this condition, if I apply this formula, that is kq minus q upon r, the potential of conductor is equal to kq upon re, the potential of earth of that instant. तो q और q कैंसिल हो गए, है ना। तो you will be getting small q from here. अगर मैं यहां से small q निकालू, I am writing somewhere here everyone, it will be capital Q R E divided by R E plus R. समझ आया क्या? देखो चेंज करके देख लो खुद ही। स्मॉल q I have to write,
Change the sides, you will get small q का value this. And बच्चों, because r is very small, radius of conductor is very small, you can write it as 0 as compared to re, and then re and re cancel, you will get small q is equal to capital Q. What your sir is trying to teach you through this complicated mathematics is actually quite simple, what I'm trying to teach. And that thing is, when you connect a conductor to earth, all the charge from the conductor flows to earth. मतलब तुम अभी सोच रहे होगे कि सर बोल देते इस बात को, हम मान लेते, इतना क्यों मेहनत करी, है ना? बट आई हैव गिवन यू द फील ऑफ इट, राइट? कंप्लीट डिस्चार्ज हो जाएगा, है ना? सो बहुत सिंपल सी बात पढ़ाई मैंने आपको, थोड़ा कॉम्प्लिकेट करके, क्योंकि अगर आपको मैथमेटिकल इक्वेशन लिखना आता है, देन यू आर मोर एम्पावर्ड इन फिजिक्स, राइट? इफ यू कैन राइट द मैथमेटिक्स ऑफ एनीथिंग, यू आर डन. वही तो करना होता है आपको एग्जाम में, राइट? सारा चार्ज अर्थ में चला जाता है, एंड दैट इज वाई द आउट ऑफ 3 पावर प्लग्स, है ना, पूरी लाइट वेट सब बंद हो गई, यहाँ पे जो 3 प्लग्स होते हैं उसमें से एक ये वाला मोटू वाला अर्थ का होता है, राइट? So that is why whenever there is some extra charge on the surface of any device, it goes to earth, पूरा का पूरा. ठीक है सर? सच बोलूं, कंडक्टर इधर मक्खन जैसे खत्म हुआ, लेकिन स्कूल में सर दर्द होने लगा था, स्कूल वाले सर ने कंफ्यूजन कर दिया था. चलिए कोई बात नहीं, बट यहाँ पे क्लियर है ना? चलिए, ओके एवरीवन, अब एक काम करते हैं, कितना टाइम बचा है, बताओ बच्चों. वी हैव लाइक सम टाइम, राइट? एक काम करो, आई विल गिव यू 5 मिनट ब्रेक, जस्ट बिकॉज हमने थोड़ा सा पढ़ाई ज्यादा किया है ना. एक 5 मिनट का ब्रेक देता हूं. 5 मिनट में आपको करना क्या है, एक लिंक है, उसमें आपको फीडबैक फिल करना है, ठीक है? एंड आई जस्ट गो फिल माई बॉटल. आप फीडबैक फिल करो, मैं बॉटल फिल करूंगा. तो रतन सर, कैन यू गिव द लिंक ऑफ द फीडबैक? आप कह रहे थे ना इनिशियली क्लास में. इफ यू हैव इट, कैन यू प्लीज गिव इट इन द चैट बॉक्स, एंड देन आई विल टीच यू डाइपोल फॉर द नेक्स्ट 20 मिनट्स. सो 25 मिनट ब्रेक प्लीज. तुम ना बेटा दरवाजा खोलो कार का. अच्छा नहीं, वो दूसरा अनुराग था, है ना? हाँ, अच्छा रतन सर, अच्छा चलिए ठीक, मैं ही ढूंढ लेता हूँ रतन सर, कोई बात नहीं. One second everyone. गाइस देख लो, ये लिंक काम कर रहा है क्या? आई थिंक इट विल वर्क. ठीक है, नॉट वर्किंग. ऐसा कैसे हो गया? ये देखो, अभी सर ने भेजा है, ठीक है, इसको ले लो आप. आई थिंक इट विल वर्क, एंड आई विल बी जस्ट बैक इन फ्यू मिनट्स. ठीक है, मैं बस पानी लेके आ गया 2 मिनट के अंदर, एंड देन विल स्टार्ट डाइपोल. फाइन एवरीवन? एनीवन वांट्स टू गेट अनम्यूटेड बाय द वे? तो मैं कर सकता हूं आपको अनम्यूट. रुचिता को ही कर दिया मैंने, उसी ने बोला था अनम्यूट करने. एंड आई कैन नॉट हियर यू रुचिता, बिकॉज मेरा माइक नहीं काम कर रहा है. ठीक है, मेरा वो हेडफोन. 2 मिनट में आया पानी लेके. ठीक है एवरीवन? यस. Okay, done. Hello, everyone. Can't see your presence. Is Ruchita singing by the way?
No, sir. If she's singing, I cannot hear her. No. Hey, Why, Ruchita? sir, please don't. ओके सो मैं अपना स्पीकर ठीक कर लेता हूँ भाई, पहले मुझे आवाज नहीं आती आजकल. Sir, we can fill, right? मैं गाऊं आप भाग जाएंगे. हम नहीं भागेंगे पायल, आप गा के तो दिखाओ. रुचिता, आर यू स्पीकिंग? Sir, Yes, how are you? fine. So why are you not singing then if you are fine? Arey, I forgot singing. What? Only when I come to the session, I forgot singing, and then afterwards I get my Acha, voice. acha. Then you get back your talent of singing, huh? Yes. Nice talent. It goes only during the class. Comes back after that. Very nice. चलो पढ़ाई करें क्या, अब आगे बढ़ें? Shall we move ahead? I used to do that in grade 11. Okay. So Ruchita, you live in Bangalore, right? Yo, How is the situation in Bangalore now? my area is kind of safe, but my school area is all it is in red zone. So what? Oh. Even if the lockdown is over, it will take a lot of time for us to get back. So they first only started our online class. So it was like Vedantu started its class. Our school also started its class. Now everyone started online class, by the way. So, But and yeah, it the is good so thing is, stupid. huh, I was like, oh my god, Vedantu is so much better than the Zoom class. yo. And teachers are struggling to teach how they teach in online. No, that happens to everyone. Whenever someone comes from offline teaching and then online teaching, it happens. Yeah, but some people are natural. Yeah. Anyways, my Zoom classes are last tomorrow because after that I have summer vacation. ओके ओके. कोरोना ने हालत खराब कर रखा है. एग्जैक्टली स्नेहा, मेरे बाल 2 महीने पहले कटे थे. It's like अभी ये थोड़े दिनों में बिल्कुल जुल्फे बन के ऐसे सामने भी आने वाले हैं. And I don't know how to cut them. Thug And if I life. cut them right, they look so bad. I cannot do that at all. No, चलो, sir, you so look good the way you are. no, अभी ठीक है. मतलब after some time, if lockdown is continuing, and obviously they are not removing lockdown for Bangalore, at least Bangalore city. Yeah, Bangalore is already rich. ट्रिमर से काट लो, घर ही गंजे हो जाओ. हाँ, ये देखो, अनुराग के जो फंडे होते हैं ना, बस ऐसे ही होते हैं. Zoom classes are still going on. By the way, Zoom is not safe, I heard. Nowadays they are No, saying. sir, it gets hacked. Some random person can enter into the class by hacking the But what password will or they hack whatever. if a school teacher is teaching? Dipole का concept? No. ये hack करके मिलेगा And क्या they, उनको? sir, they play songs and they don't allow us to listen to what ma'am is teaching also. They scratch on the boards and all. And literally, we don't know. Some anonymous person comes and enters into the class and says hi, hello, and kind of make a ruckus. It just 40 minutes it allows. And that Okay, is also okay. Nice. Chalo, I hope you guys have filled it, right? And those who have not filled, Sir, no worry. You just, I'm in the middle of it. Oh, you I'll are fill filling it it now. Yeah, I'll fill it later. You guys can fill it later also, okay, guys? You have the link, right? Maybe you can copy, paste somewhere, or open a new tab where you can go later and you can do that, okay? Chaliye. Okay, Ruchita, I'll mute you. Fine. Bye. चलो, bye-bye. सर जी, मैंने आपको किया था इसलिए बताया. अच्छा, अपने आप को किया था. Okay. That's why our school shift to Google Meet. हाँ, Google Meet is also better, yeah. Okay, Feliz ने कुछ लिखा है बहुत लंबा चौड़ा. Sir, yesterday Delhi's Deputy Chief Minister Mr. Manish Sisodiya sir has appealed that syllabus of exams like JEE and NEET and CBSE reduced by 30%. Really? Sir, if it happens, then Vedantu will also not teach that part. ये अभागा हमें बनना पड़ेगा, नहीं पढ़ेंगे वो. ऐसा कुछ भी नहीं है. We will teach. है ना, हम लोग बिल्कुल टीच करेंगे. Don't worry about it, everyone. पढ़ा देंगे हम लोग. Don't worry about it. And anyways, they are not going to do that. Even if they do it for CBSE, the NEET and JEE people, they will never like say yes for this. Okay, sir, बोलिए ना प्लीज. पायल, मैं तो पिछले 1.5 घंटे से बोल रहा हूँ. मेरा आंसर मैं आपको अनम्यूट ही कर देता हूँ, है ना?
सो ऑडियो वीडियो कर दूं या सिर्फ ऑडियो कर दूं? चलो ऑडियो वीडियो कर देते हैं. पायल इज अ न्यू स्टूडेंट, शी वाज नॉट देयर विद अस मतलब लास्ट ईयर. तो अरे अरे अरे, चैट इतना तेजी से करते हो तुम लोग. मैं उसको अनम्यूट कर रहा हूँ, बेचारा नीचे चला गया. चलो हाँ, यस पायल बोलिए. 50% कटने वाला, सही है. हाय पायल, Hello, sir. हाउ आर यू? कैन यू हियर मी? Yes, ऑब्वियसली, है sir. ना. How are you? आप बताइए. आई एम गुड, आई एम गुड. सो Sir, आप वेयर डू Bangalore, यू लिव बाय द वे? व्हिच पार्ट ऑफ इंडिया? sir, Bihar, Sasaram. ओह नाइस नाइस. हाँ. सर, आप चलिए बताइए बैंगलोर में क्या कहाँ डाउट रहते है. हैं? सर, आप बिहार में कहाँ रहते हैं? बैंगलोर में कहाँ मैं रहते हैं? बैंगलोर में नियर नियर इंदिरा नगर. उस मेरे इंदिरा मामा नगर भी इज द वहीं रहते एरिया हियर. हैं। मेरे मामा भी डॉक्टर हैं, वहीं रहते हैं। अच्छा, नाइस. बैंगलोर ही में ओके रहते ओके, हैं वो नाइस भी। कोइंसिडेंस. वैसे डॉक्टर्स तो फेमस होते हैं. क्या नाम है आपके डॉक्टर का, मतलब आपके मामा जी का? डॉक्टर उदय अरोड़ा। ओके ओके, ठीक है. मतलब मुझे पता नहीं है, बट अच्छी बात है. आई सर्च इन गूगल में भी. नहीं, बताइए डाउट क्या क्या है, देन रहते आई हैं? अनम्यूट सरस्वती एज वेल. हाँ. सर, मुझे आपसे कांटेक्ट कैसे होगा? आपका नंबर या आईडी, टेलीग्राम आईडी, व्हाट्सएप नंबर? हेलो, हेलो। इज इट फाइन नाउ एवरीवन? वेलकम बैक, राइट? लॉन्ग टाइम नो सी. हाँ. चलो सरस्वती, आई विल टेक योर डाउट, आई विल अनम्यूट यू आफ्टर सम टाइम, ठीक है? To answer Payal's doubt, there is a Telegram group of Sankalp NEET Alpha. Okay, so just mail it to the Vedantu people and whoever person is your point of contact. Payal, आप उनसे बात कर लीजिए and they will definitely add you to the group. Okay. तो सरस्वती का कुछ डाउट है. आई टेक सरस्वतीज डाउट. आज तो लगता है डाइपोल पूरा नहीं हो पाएगा. मे बी वी हैव टू एक्सटेंड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बाय 1 क्लास. चलिए, तो सरस्वती टेल मी व्हाट इज डाउट. सर ये डाउट बहुत गंदा है, आप मारेंगे मुझे। कोई बात नहीं, मैं नहीं मार सकता, तुम बहुत दूर हो यहाँ से. बता दो. सर आपने जो वो पोटेंशियल वाला किया ना, तो मुझे हाँ वो हाँ. नहीं आ रहा, डिराइव करने नहीं आ रहा है मुझे वो। कौन सा पोटेंशियल वाला किया मैंने? V1 फिर V2 उसको ऐड करके हमने Q निकाला ना सर। क्यू निकाला, हाँ हाँ हाँ. स्मॉल Q, हाँ वो वाला नहीं आ रहा है मुझे, जम नहीं रहा है सर। देखो कुछ भी नहीं है. पहले चार्ज कितना था इस कंडक्टर पे? क्यू था क्या पहले वाले पे? हाँ सर। अभी इसमें से क्यू चार्ज चला गया, तो अब कितना बच गया? क्यू माइनस क्यू, कैपिटल क्यू माइनस यस सर। स्मॉल क्यू, है ना? एंड यस सर। सिमिलरली दूसरे वाले कंडक्टर पे 2 क्यू चार्ज था बिगनिंग में, यस सर। और उसको तो क्यू चार्ज मिला, राइट? तो उसका चार्ज कितना हो जाएगा? 2 क्यू प्लस स्मॉल क्यू. यस सर। अब इसके बाद हमने बोला कि जब भी हम दो कंडक्टर्स को कनेक्ट करते हैं तो पोटेंशियल दोनों का इक्वल हो जाता है, राइट? यस सर। दोनों का पोटेंशियल इक्वल हो जाता है. और पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या है सरस्वती? पोटेंशियल का फॉर्मूला है के क्यू अपॉन आर, है ना? के लास्ट इंटू स्टेप चार्ज. नहीं समझ में नहीं आया सर मुझे, वो कैसे आपने Q इज इक्वल्स टू 2Q/5 आया, वो मुझे नहीं हो रहा है, मेरे से नहीं हो रहा है। अच्छा, ये सॉल्व नहीं हो पा रहा, ये कह रहे हैं आप, यस राइट? सर। यस ओके सर। ओके, वो तो आसान था. देखो ठीक है, अ, यहाँ से आर और आर कैंसिल हो गए, करेक्ट? यस सर। ये 4 जाके इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा क्या इस साइड, है ना? यस सर। और यस के सर। और के भी कैंसिल हो गए. तो बेटा देखो, ये 4 जब मल्टीप्लाई होगा तो आपको मिलेगा इधर 4 क्यू, 4 कैपिटल क्यू, है ना? यस। माइनस 4 स्मॉल क्यू, यस करेक्ट? सर। इज यस। इक्वल टू यहाँ पे क्या लिखा है? 2 कैपिटल क्यू प्लस स्मॉल क्यू, यस सर। है ना? अब देखिए बहुत आसान है. तो ये 4 कैपिटल क्यू है, ये 2 कैपिटल क्यू है. जब ये 2 इस तरफ आएगा तो ये क्या बन जाएगा? 2 क्यू ओनली, 4 माइनस 2. यस सर। जब ये 4 इस तरफ जाएगा तो क्या बन जाएगा? 5, 4 प्लस 1, है ना?
यस सर, माइनस यस 4 विल बिकम 4, तो ये बन जाएगा 5 स्मॉल क्यू। तो स्मॉल क्यू की वैल्यू क्या आ गई? 2q/5। एक्चुअली सर आपने बाद में से 4 ही लाया और वो KQ माइनस KQ है, तो ऊपर तो K कैंसिल हो गया, लेकिन इधर KQ था, इसलिए तो मुझे वो डिराइव करने नहीं आ रहा था। मैंने जब ये लिखा था ना यहाँ पे, तो मैं ये 4 इधर लिखना भूल गया था। आई रिमेम्बर दैट, हाँ, है ना? ये और ये 4 वाला मैंने K भी ध्यान नहीं दिया कैंसिल नहीं था। हुआ, तो करेक्ट करेक्ट, यस। बाकी कुछ है नहीं, सिंपल मैथ्स है। ओके, इसीलिए सॉरी सर, इट्स रियली मतलब बहुत नहीं नहीं, कोई बात नहीं, घटिया हो सा जाता है, डाउट है, बट मुझे नहीं आ रहा था। कंफ्यूज हो जाते हैं कई थैंक बार, यू सो डोंट मच वरी। सर। हाँ हाँ, वेलकम वेलकम। चलो, सो शैल आई स्टार्ट द न्यू टॉपिक टुडे? सर अगर अभी डाइपोल खत्म ना हो, मेरा डाउट देख लेंगे, टेलीग्राम पे पड़ा है, प्लीज डू चेक। देखो एवरीवन, लेट अस टेक डाउट्स टुडे, क्या कहते हो? 10 मिनट बाकी हैं। 10 मिनट में मैं पढ़ा भी नहीं पाऊंगा वैसे भी डाइपोल आपको, है ना? तो डाउट्स ही ले लेता हूँ फिर, ऐसा है तो। क्या कहते हो यार तुम लोग? टेल मी गाइस, है ना? So dipole is a topic which takes around 20 to 25 minutes to complete it. So that we'll be doing tomorrow in the beginning. And after doing dipole, we will start with current electricity. Will you be happy with that? And by the way, it's an achievement that we have completed electrostatics in the assigned number of the classes. 10 classes were assigned, or 10 classes में almost हो गया है. We are just extending by 30 minutes, right? अदरवाइज 11th में आपको याद होगा हर क्लास जो एक्सटेंड हो जाता था, है ना? 2-2 4-4 क्लासेस एक्स्ट्रा लगते थे बिकॉज ऑफ बेसिक मैथमेटिक्स, वेक्टर्स एंड ग्लोबल वार्मिंग। खैर, वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया, सही बात है। चलो, कोई गाना वाना गाना चाहता है तो बता देना भाई आप। तो स्नेहा ठीक है, आपको मैं अनम्यूट कर देता हूँ, आइए बताइए क्या डाउट है। सर जो मेरा नेट लैग की वजह से मिस हुआ वो भी रिपीट करोगे? हाँ हाँ, वो भी कर दूंगा। बताइए स्नेहा। हाँ बताइए, हाउ आर यू? आप कैसे हो? मैं भी बढ़िया। सर सुनाई दे रहा है ना? आवाज आ रहा है ना? आ रहा है, बट थोड़ा ना डिस्टरबेंस है, पंखे का या कूलर का, किसी चीज का। हाँ मैं कर देती हूँ। हाँ। सर क्वेश्चन था, two identical charged spheres हम्म suspended from a common point have two massless strings of length L and initially at a distance of d apart because of their mutual repulsion. ओके, दो चार्ज पार्टिकल्स, चार्ज स्फीयर्स, हाँ दे आर एट अ डिस्टेंस ऑफ डी, यू आर सेइंग, राइट? हाँ, और L लेंथ वाले स्ट्रिंग्स कॉमन सस्पेंशन पॉइंट से। हाँ हाँ। हाँ. The charges begin to leak from both these spheres at a constant rate. As a result, the spheres approach each other with a velocity v. V varies as a function of distance x between the spheres as. किसका वैल्यू पूछ रहे हैं? एज अ फंक्शन ऑफ डिस्टेंस? v का. v का वैल्यू पूछ रहे हैं, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है ये, है ना? थोड़ा जेई टाइप का क्वेश्चन है। कौन सी बुक में मिला वैसे आपको बुक क्वेश्चन? प्रीवियस ईयर में पूछा था, नहीं 2016। राइट, ठीक है। देखो 2016 का पेपर, दोज हु डोंट नो, इट वाज द टफेस्ट पेपर ऑफ नीट बाय द वे, है ना? मतलब अभी जो 5-6 साल के पेपर्स अगर आप कंपेयर करेंगे, देन सी द 2018 पेपर, 19 पेपर, 17 पेपर, 16 वाज द टफेस्ट। इसका रीजन पता है क्या है? 16 पेपर वाज लीक्ड। 16 का जो पेपर था नीट का, वो लीक हो गया था, और उसके बाद एग्जामिनर्स का दिमाग फिर गया। उन्होंने बोला रुको, हम इस बार बताते हैं आपको। तो फिर जो पेपर उन्होंने सेट किया ना, वो थोड़ा जेई टाइप का पेपर सेट कर दिया था। ठीक है, कोई बात नहीं। देखो तो यहाँ पे उसने क्या बोला है, जब दो चार्जेस हैं, इनिशियली दे आर इक्वल, राइट? क्यू एंड क्यू, करेक्ट? सो इफ यू राइट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, तो आप क्या लिखेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को? k into q square divided by d square, है ना? ये इसका फोर्स हो जाएगा। बट देन they have given the rate at which the charge is leaking, right? तो the rate at which charge is leaking, इसका मतलब क्या है? फोर्स भी धीरे धीरे कम होता जाएगा। बट दिस इज नॉट द ओनली फोर्स which is acting on the charge particle. आप अगर चार्ज पार्टिकल का फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं तो आपको देखने को क्या मिलेगा, है ना? इस तरफ टेंशन है, ऐसे क्वेश्चंस मैंने कराए थे आपको, है ना?
इस हाँ तरफ सर। mg है और इस तरफ आपके पास क्या है, kq स्क्वायर डिवाइडेड बाय d स्क्वायर है। एंड देन ऑब्वियसली एंगल जो है वो भी चेंजिंग एंगल है, टाइम के साथ वो एंगल चेंज होता रहेगा, है ना। सो आप इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले तो FBT बना के x डायरेक्शन का फोर्स निकाल लीजिए, नेट फोर्स, ठीक है। तो y डायरेक्शन में बैलेंस कर लिया, x डायरेक्शन में बैलेंस कर लिया, और क्योंकि ये जो स्फीयर है वो तो x डायरेक्शन की वेलोसिटी पता करनी है हमको, राइट। इट इज गोइंग लाइक दिस, x डायरेक्शन वेलोसिटी वी हैव टू फाइंड आउट। तो फॉर दैट वी नीड द फोर्सेस एक्टिंग इन द x डायरेक्शन एज वेल, मतलब उसी डायरेक्शन में हमें चाहिए, है ना। तो उसके बाद आपका एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या हो जाता है, v dv डिवाइडेड बाय dx लिख लीजिए आप, है ना, या फिर आप dv बाई dt लिख लीजिए। तो यहां से आपको फिर इंटीग्रेट करके इसका वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ x आपको मिलेगा यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ से आपको नेट फोर्स लिखना पड़ेगा। मतलब बेसिकली ये क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि इसमें फिजिक्स टफ है, इस क्वेश्चन में जो मैथमेटिक्स इन्वॉल्व है वो थोड़ा सा लंबा है ना। तो एक बार विल बी डन, ठीक है। चलो, एंड या वेलकम। और कोई कुछ कह रहा था क्या, फलक ने कुछ क्वेश्चन भेजा ना मुझे। चलो सर, रिवीजन कैसे करें एक चैप्टर कंप्लीट होने के बाद, दिस इज अ वेरी नाइस डाउट बाय द वे, है ना। एसएम का डाउट जो है, रिवीजन कैसे करें। बाय द वे आई ऑलवेज टेल दिस टू ऑल ऑफ यू, रिवीजन का मेथड क्या क्या होना चाहिए। देखो एवरीवन, वी आर बिगिनिंग द प्रिपरेशन ऑफ नीट, राइट। तो it is very important to follow a certain procedure throughout the year, especially in physics. That procedure is, first of all you have to download all the session PDFs, है ना। session PDF download कर लिया, downloading the session PDF you have to read it, and this reading should be done in a gap of just 1 or 2 days. जैसे आज सेशन हुआ तो by tomorrow or day after tomorrow you have to read the PDF. Make the short notes out of it. In the short notes you have to write down the important points. जैसे कंडक्टर्स का आज टॉपिक किया है तो उसमें राइट डाउन कि if it is a cavity, if a charge is there, capital Q, then minus Q will be developed here, plus Q will be developed here. Small short concept, है ना, so that even if sometime you don't have a lot of days to give the examination, आप फटाफट इसको रिवाइज कर सकते हैं। शॉर्ट नोट्स में also you have to include the formulae, which is very important, है ना। I have told you most of the questions of class 12th will be solved using formula only. तो ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट डाउन द फॉर्मूले एज वेल, शॉर्ट नोट्स तो लिखना ही है। उसके बाद आर यू गेटिंग द असाइनमेंट्स। एंड बाय द वे, आपका जो प्रॉब्लम था ना असाइनमेंट में क्वेश्चंस रॉन्ग है, मैंने हमारे जो कंटेंट के जो हेड हैं साहिल भाटिया सर, उनको मैंने ये चीज फीडबैक दे दिया है, ठीक है। सो दे विल ट्राई टू इंप्रूव इट नाउ। नेक्स्ट आपको क्या करना है, असाइनमेंट सॉल्व करने हैं, ठीक है। एंड एवरीवन, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, whatever book you are having, some people prefer MTG is a very good book by the way. SL अरोरा कुछ लोग प्रेफर करते हैं, कुछ लोग DC पांडे। Buy DC पांडे only if you think you can manage time or you can get more time for physics practice, because DC पांडे is a vast book. इसको आप अच्छे से अगर कर लेंगे तो definitely you are going to get output of it, but हाँ तभी लेना जब आपके पास टाइम बहुत सारा होगा। अदरवाइज MTG ले सकते हैं, और इवन यू कैन सॉल्व आवर तत्वा मटेरियल दैट यू आर गोइंग टू गेट, असाइनमेंट्स क्वेश्चंस एंड द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। प्रैक्टिस पार्ट इज मोर इंपॉर्टेंट फॉर योर नीट एग्जामिनेशन, ठीक है। तो डाउनलोड द PDF, रीड द PDF, शॉर्ट नोट्स बनाओ, उसका फॉर्मूला लिखो, उसका एक फॉर्मूला कॉपी में, असाइनमेंट सॉल्व करो, MTG, DC पांडे या फिर कोई से भी बुक में से एक कोई बुक कर लो, एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर सकते हैं। If you want to do previous year question at the end of the year, that is also fine. पहले आप बुक्स लगा लीजिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप बाद में भी कर सकते हैं, that is also completely fine. But one very important point, when you are solving any book and let's say question number 13 you did not, you was not able to solve it, you were not able to solve it, right, बहुत ज्यादा difficult लगा, स्टार मार्क करके रखना, so that in the next revision first question that you solve from that chapter should be the 13th question, क्योंकि ये आपसे पिछली बार नहीं हुआ था, है ना। so that is the high priority question. तो ऐसे आपको रिवीजन करना पड़ेगा, ठीक है एवरीवन। दिस इज द रिवीजन स्ट्रैटेजी। और फलक का एक क्वेश्चन था, फलक बहुत देर से बोल रहा है सर मेरा क्वेश्चन भी करा दो। सर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पहले करती हूं ताकि एक आइडिया मिल जाए कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं। कर सकते हैं आप, बिल्कुल कर सकते हैं आप, है ना।
जनरली एक आध ईयर का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमें रखना चाहिए लास्ट के लिए, वो भी आप कर सकते हैं। 20 का या 19 का रख लो, जो आप बाद में सॉल्व कर लो लास्ट में, थोड़ी फील आ जाती है ना, कि अगर मैं 20th का पेपर देती तो मेरा कितना नंबर आता एग्जाम में, जस्ट टू नो दैट, है ना। डू वी नीड टू रीड एनी? एच सी वर्मा नॉट नीडेड, एच सी वर्मा इतना ज्यादा जरूरत नहीं है इस चीज का, ठीक है। यू हैव टू फोकस ऑन द ऑब्जेक्टिव बुक्स, एच सी वर्मा इज अ सब्जेक्टिव बुक। एररलेस भी ठीक है, नो प्रॉब्लम, चलेगा आपको, है ना। पायल आपका ना वॉइस बहुत ज्यादा ब्रेक हो रहा था, शायद इंटरनेट का प्रॉब्लम है, आप टाइप ही कर दो, बेटर होगा। शुभांगी मैं पढ़ रहा हूँ आपका मैसेज, ये लो आपको अनम्यूट कर दिया, बोलो। अच्छा माइक्रोफोन भी नहीं है। टुडे माय मैम इज सेइंग टू सिंग ओल्ड हिंदी सॉन्ग, जीना यहाँ मरना यहाँ। ओह मन इज सिंग, हाँ हाँ बिल्कुल गा देना आप। आई यूज MTG फिंगर टिप्स, बहुत बढ़िया, नो प्रॉब्लम, बहुत सही है। एच सी वर्मा जिसने भी पूछा, फेलिज ने पूछा था और 2-3 लोगों ने, और नॉट नीडेड एट ऑल, ठीक है। आप उसके सब्जेक्टिव क्वेश्चंस में आपका टाइम वेस्ट होगा। एंड इफ यू सी द सब्जेक्टिव क्वेश्चंस ऑफ HCV, दे आर वेरी लेंथी इन कैलकुलेशन, कैलकुलेशन बेस्ड होते हैं, विदाउट कैलकुलेटर समटाइम्स यू विल नॉट बी इवन एबल टू सॉल्व द क्वेश्चंस, ऐसा भी होता है ना। सो दैट इज व्हाई। हाँ फलक आपका डाउट मैं देख लेता हूँ, क्या कह रहे हैं आप। क्वेश्चन 40 में पॉइंट्स रेडियल इनवर्ट्स का मतलब क्या होगा? A conducting sphere of radius 10 meter unknown charge, if the electric field at distance 20 meter from the center of a sphere is itna, the points radially inverts the net charge on the sphere is, मतलब स्फीयर के पास नेगेटिव चार्ज होगा इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली इन्वर्ट होगी, और क्या है ना फलक। देखो जब आपके पास पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर होता है ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जाती है बाहर की तरफ, नेगेटिवली चार्ज होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर की तरफ आएगी। चार्ज गिवन है आर रेडियस पे, फॉर्मूला लगाओ हो जाएगा, ठीक है। ओके सो सर ई का वैल्यू मेरे ऑफलाइन वाले मैम ने 2.47 बताया था इक्विलिब्रियम में, बट वेदांतु में 2.303, क्या सही है सर? केमिस्ट्री का डाउट है बट फिजिक्स में भी आता है। नहीं 2.47 सही है ना। सो दैट इज द वैल्यू ऑफ ई, एक्सपोनेंट है वो। यहां से आप जब कंपेयर करते हैं ना log बेस 10 को और ln को, वहां पे 2.3 आता है, ठीक है। सो ln2 इज इक्वल टू log बेस 10 इंटू 2.303, ये करेक्ट रिलेशन है, बट ई का वैल्यू जो आपने लिखा था वही वाला सही है। ओके चलिए, तो आई होप आई टुक योर डाउट्स। हाय आयान, बढ़िया, देखो आज आयान आया हुआ है, आई एम गुड। आप कैसे हैं आयान? अप्रोक्सीमेट कितने सम्स करना है एक दिन में? टाइमर लगा के बैठ जाओ, एंड फॉर फिजिक्स एटलीस्ट ट्राई टू डू 30 40 50 सम्स एटलीस्ट, है ना, कम से कम इतना तो करना ही है आपको। मैं तो तब से सोच रही, अगर सैलून नहीं खुला तो आप कैसे दिखोगे? वाह, मतलब और कुछ अच्छा सोचने को नहीं था तुम्हारे पास, यही बचा था, बट मैं अच्छा ही दिखूंगा, ठीक है। हाँ आई बिलीव, आई नो, बट बहुत लेंदी होता है ना जेई का सब्जेक्टिव वाला, सो हम लोग जितना हो सके MCQ करें। करेक्ट करेक्ट, एक्चुअली HC वर्मा इज अ गुड बुक, बट हाँ वो दैट इज नॉट नीडेड फॉर यू फॉर द नीट एग्जामिनेशन। और मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आपका भी स्कूल भी खुल जाएगा थोड़े टाइम बाद, अगर कोरोना वायरस खत्म हो गया तो फिर आपको स्कूल और ये मैनेज करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। सर आपकी अपनी तारीफ करने की आदत गजब है। नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, आई वाज जस्ट किडिंग। ओके चलिए, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, है ना। हाँ हाँ तत्व से भी चलेगा। अरे बेटा कोई भी एक बुक कर लो, एनी वन बुक यू कैन डू, ठीक है, चल जाएगा। आयान कह रहा है अनम्यूट कर दो, आ जाओ आयान। बाय बाय एवरीवन, गुड नाइट। हाँ आयान, क्या हालचाल, कैसी है लाइफ? आ रही है आवाज? तुम्हारी आवाज नहीं आ रही यार, इसकी आवाज तो आई नहीं। कल्याणी, आई हैव अनम्यूटेड। Sir, hello sir. हाय कल्याणी, टेल मी। Sir, actually, I have not that much doubt, but I want to हाँ ask that I have not still started. मतलब 11th का at least 2-3 chapters हुआ है. From Jan, I have joined Vedantu. I have got 11 sessions. I have cleared 3 chapters at least. So for today, I would like to start 11th or only 12th. No, up to August or September month, you don't have to focus on 11th. Please focus completely on 12th, okay?
and Yes. try to understand each and every concept of class 12th for physics, chemistry, and bio. Completely devote your all the time in 12th up to August or September, right? Up to August or September, you will complete the 12th syllabus here at Vedantu, and then only you have to focus on 11th. Otherwise, 11th, 12th, both you will not be able to do. Getting my point? Yes, sir. In the beginning, up to August, September, please focus completely on 12th and give all your time to 12th only. Fine? Okay, sir. Sir, actually, I am from state board. As you have said that 12th and Maharashtra 11th, State. 12th and 11th are exchanged. So I Hmm. am studying state board also 12th. So it is fine that I will cover 11th CBSE. Yeah, no problem. They are similar only. So after August or September, you will be able to finish it. No problem. First, you focus on 12th only. Okay. Okay, sir. Thank you, sir. Yeah, welcome. अनुराग आ जाओ यार, आ जाओ. अनम्यूट कर दिया तुम्हें. सर फॉर 5 months स्कूल विल बी क्लोज्ड. हाँ अभी देखो, अभी ये आया थोड़ा ना. अनुराग का माइक्रोफोन इज नॉट वर्किंग बाय द वे. अयान बिस्वदत्ता, अनम्यूट मी, आई वांट टू डांस. अयान रियली? चलो अब तो इसको डांस करा के रहेंगे, हम नहीं मानेंगे अब, है ना? तो रुको, अयान को एक बार अनम्यूट कर लेते हैं. आ जाओ अयान, वीडियो के साथ किया बेटा इस बार. कम ऑन, शो सम मूव्स. ये गायब हो गया. हाँ कैसे हो बताओ. सर? मैं बहुत बढ़िया यार, तुम बताओ. तुम भी बहुत खुश लग रहे हो. हाँ सर, बढ़िया हो. बढ़िया हो. पढ़ाई लिखाई सही चल रही है? हाँ सर. ठीक है, उधर जाके लौट जाओ ऐसे बेड में ऐसे करके और नागिन डांस करना चालू कर दो. बहुत जगह है यार पीछे, मतलब कुर्सी हटा दोगे तो बहुत अच्छे से दिखेगा. अरे सर, बेड चलो. टूट जाएगा. हाँ. बेड टूट जाएगा. चलो, कुछ पूछना था या नहीं बस सर, हाय बोलना था? ऐसे ऐसे हाय बोलना था. हाँ. तो चले कहाँ गए थे अभी जब मैंने अनम्यूट किया तो? हाँ सर, वो लाइक साउंड आपका गायब हो गया, लाइक यू आर अच्छा. नॉट एबल दैट. हाँ. चलो, गुड टू सी यू यार आफ्टर लॉन्ग टाइम. पढ़ाई चल रही है ना अच्छी? हाँ सर. करो, बहुत सारी बुक्स दिख रही हैं टेबल पे, उनको पढ़ भी लेना है ना. अरे सर, अभी बायो का क्लास हो रहा था इसलिए. चलो ठीक है. ओके गाइस, बाय बाय. मिलते हैं. बाय अयान. बाय सर. See you everyone, right? Bye-bye. Good night. Bye-bye everyone.